Hello everyone, how are you all? Hopefully, you people have attempted your third Anubhav and you have experienced the UPSC environment for the third time before attempting your exam. You will be given more chances, so don't worry about it. Right, as you all know, the next Anubhav that we are going to conduct, it is going to be basically conducted in more cities. As per your demand, it will be covering more than 50 cities in the offline mode. And since you people are giving it in both offline and online mode, so more accessibility will be there. Right, apart from that, you people have realized that many times when we are discussing, the importance of these discussions is when we are discussing and we are giving you some extra pointers, and these extra pointers sometimes led you or basically help you to solve certain other questions which are coming in the exam. Right, so that is the benefit of these discussions, that why we are conducting these discussions. So let's begin with today's discussion of Anubhav 3, and as always I'll be taking the portions of economy and current affairs over here. So let's begin with economy. Question number 73, it is set A, so you guys can basically cross check with your own set. Right, so 73 third question is basically related to which of the following. It is related to the calculations of GDP. Which all items will be included in the calculation of GDP. Now you need to understand कि सर ये question क्यों दिया GDP की calculation, ये तो basic हो गया. Now if you have seen that recently the government has come up with the consumption expenditure survey, and in this consumption expenditure survey the important thing that is being discussed or the significance of this survey is that now with the help of this we frame our consumption baskets. राइट, जिनके ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है लोगों का, और उस लोगों के एक्सपेंडिचर से हम दो चीज़ें मेजरली मेजर करने की कोशिश करते हैं. एक होता है हमारा CPI, राइट, दैट इज रिटेल इन्फ्लेशन. सो दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे. जैसे कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे में बताया गया कि फूड पे एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है. सो इन people are now saying that most probably we will see in future, once this survey is complete, and right now they have just given us the fact sheet, so when the data is in public, there might be a possibility that we will see the weightage of food in CPI decreasing. Also, if you see that most of our surveys have a base year of either 2004-05 or 2011-12, because the last survey, consumption expenditure survey data that we have or that was in public was in the year 2011-12. Right. Similarly, one another thing that can change because of this consumption expenditure survey is basically the calculations for GDP or the basket that is taken for GDP. Although GDP's basket is much bigger as compared to the CPI or your consumption expenditure survey basket, but a majority of the things are or basically taken from the weightage point of view, what the people are doing the expenditure on, because the same things are being produced in your country. राइट, सो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जीडीपी के कैलकुलेशन में इस्तेमाल की जाती हैं. पहला है रीसेल ऑफ गुड्स. अगर आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझें तो यहाँ पे वी आर काउंटिंग इफ basically there are different methods, either you can take income method or you can take expenditure method, and when we go for expenditure method the formula that we used is basically CGI, C plus G plus I plus NX, if you guys remember. Right, so C is consumption, G is government expenditure, I is investment that we talk about, and NX is the next net exports. Right, so यहाँ पे आप देखिए कि consumption किसका, final good की हम बात करते हैं. Right, and when we basically talk about value addition then we talk about the intermediary goods. But यहाँ पे जो पहला point दिया गया है वहाँ पे क्या है, resale of goods. Resale of goods obviously is not basically helping in the formation of GDP. Production of new good or production of the final good and services are considered in the GDP. So पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका गलत हो गया. Right, so the first one is wrong. Then social security benefits, again these are the benefits which are generally basically your insurance, it can be your PFs, it can be any kind of that sort of benefit which is being given by the government, or basically you have invested in it. Right, again that will not be counted in the as a part of GDP क्योंकि यहाँ पे किसी भी नई चीज़ की प्रोडक्शन नहीं हो रही है as such. Right, export from exclusive economic zones. अब इन दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि SEZ नहीं है, यहाँ पे EEZ पूछा गया है. EEZs क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया ओनली. राइट, सो 200 नॉटिकल माइल्स आपने देखा होगा कि जो भी हमारा कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स की जब हम बात करते हैं उसे EEZ बोलते हैं, एंड इंडिया बेसिकली ट्रीट्स इट एज इट्स ओन टेरिटरी फॉर एनी कंट्री फॉर दैट मैटर. सो यहाँ से जो भी चीज़ प्रोड्यूस होगी वो इंडिया की है और उसे अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सो इट विल बी काउंटेड इन अवर GDP. Right, black market activities
obviously that is one flaw that we have seen in case of GDP calculations at different ways. यहाँ पे जो ब्लैक मार्केट का है वो काउंट नहीं होता है, उसी को तो हम कर्व करने की कोशिश करते रहते हैं. क्यों? क्योंकि ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज आर बेसिकली दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ द गवर्नमेंट, अदरवाइज तो उन पर टैक्स लग जाएगा, फिर ब्लैक मार्केट कैसे रहेंगी. सो ये अगर हम बात करें तो दिस इज ऑल्सो नॉट काउंटेड, सो द आंसर ओवर हेयर विल बी ओनली 1. Right? A very basic, very simple question has been asked, but you need to understand that it becomes important due to consumption expenditure survey. Plus we are having discussions about GDP versus GVA in the newspapers right now. Right? So go through that articles also. Recently we have seen an article in Indian Express with respect to that. So go through those articles. Right? So these are basically the three ways of calculating your gross domestic product. One is the expenditure method, जहाँ पे हम consumption की बात करते हैं, consumption of individuals, investment by the people, and government expenditure and net exports. Generally we use this method, or in some cases we use the production method also, जहाँ पे हम final value of all goods and services लेते हैं, right? minus or plus the intermediaries cost, right? This is the income method. अगर हम टेक्निकली बात करें, आइडियली बात करें तो जीडीपी कैलकुलेशन आप किसी भी मेथड से करें, इट शुड कम सेम, राइट? तीनों मेथड से आपकी जीडीपी कैलकुलेशंस आइडियल केस में सेम आनी चाहिए. इनकम मेथड इज बेसिकली द इंक्लूडिंग द फैक्टर कॉस्ट, राइट, जिसमें आपकी वेजेस हो गई, रेंटल रेट ऑन कैपिटल हो गया और प्रॉफिट्स हो गए. सो जो हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं ऑन द इन्वेस्टमेंट, उनके ऊपर से जो आपकी इनकम आ रही है उस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी जनरली इन इंडिया वी यूज दिस मेथड, राइट, एंड समटाइम्स वी यूज दिस मेथड. सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि इनके अंदर हम कैसे डिवाइड करते हैं, ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ योर बेसिक एंड यू ऑल हैव कवर्ड इट, राइट. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, Reserve Bank of India approved first loss default guarantee program for digital lending. What will be its implications? अब अगेन डिजिटल लैंडिंग, मैंने आपको थोड़े दिन पहले जब हम पिछले एक टेस्ट में डिस्कशन कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट P2P लैंडिंग, जहाँ पे मैंने बताया था कि पीयर टू पीयर लैंडिंग की जा रही है विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फिनटेक्स, और दे आर बेसिकली हेल्प बाय NBFCs टू प्रोवाइड दोज लोन्स एंड एवरीथिंग, राइट, और टू बेसिकली मेक दोज ट्रांजेक्शंस पॉसिबल. अब यहाँ पे एक और बात की जा रही है कि ये जो आपकी फिनटेक एप्स हैं, जो आपकी फैसिलिटेटर हैं, विच आर बेसिकली द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स दैट वी हैव, ये लैंडिंग में मदद कर रही हैं. अब लेकिन ये लैंडिंग कैसे कर रही हैं? दे आर नॉट द बैंक्स, सो इनके पास बेसिकली दे आर नॉट द बैंक्स, सो दे कैन नॉट lend the money. So what they do is they are basically collaborating with a registered entity or a bank, right? And they are taking loans from that registered entity or a bank, and they are providing a platform to the people who are looking for loans, for smaller loans, right? It is basically helping those people who do not have a credit score, who do not have a your institutional financial credit history. So वो लोग भी इसकी मदद से क्या है, लोन ले पा रहे हैं. बट यहाँ पे गवर्नमेंट का एक कंसर्न था विच वॉज जेन्युइन, दैट व्हाट विल हैपन इफ दीज लोन्स डिफॉल्ट, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट? सो उन्होंने बोला कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंटरमीडिएट्स की तरह काम कर रहे हैं, दे शुड ऑल्सो ओन सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर एंटरिंग इनटू दिस बिजनेस, राइट? इट शुड नॉट बी द बैंक हुज NPAs आर गोइंग टू इंक्रीज इफ दे आर प्रोवाइडिंग सच हाई रिस्क लोन्स. सो उन्होंने इसे बीच में कर्व किया और फिर उनके लिए दे बेसिकली ब्रॉट दिस फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी प्रोग्राम. इसमें फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने क्या किया है, दैट 5% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, 5% of the total loans that will be disbursed by these fintech apps, they have to keep that as a security amount with the registered entity or a bank, right? 5% जो पैसा है वो as a buffer आपको रखना पड़ेगा, that basically to make you eligible to indulge in giving such kind of loans. And वो जो 5% पैसा है, it will be basically acting in those cases जहाँ पे आपका लोन डिफॉल्ट होता है और उसे रीपे करने के लिए these mediatories who are basically gaining certain cut between it, they will have to chip in, right? So ये स्कीम पूरी की पूरी इसी चीज पे बेस है. So it's a fintech platform will compensate the lender for a portion of losses if borrower default. So the answer will be A, जो मैंने अभी आपको बताया. Obviously अगर आप देखें बाकी के ऑप्शन, तो यू कैन इजीली एलिमिनेट, अगर आपको बेसिक आइडिया भी है कि लेंडर विल कंपनसेट द फिनटेक प्लेटफॉर्म फॉर अ पोर्शन ऑफ लॉसेज इफ अ बोरोअर डिफॉल्ट्स. अब सोचिए कि लेंडर है जिसने ऑलरेडी पैसा दिया हुआ है और बोरोअर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो लेंडर क्यों कंपनसेट करेगा फिनटेक को? फिनटेक ने तो बीच में कुछ किया ही नहीं है, राइट? फिनटेक वॉज जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर, और उसका जो मैक्सिमम लॉस हुआ है वो है कि उसका परसेंटेज कट नहीं आएगा वहां से, राइट? सो दैट दिस इज रॉन्ग. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation will partially compensate the lender in case of default. So this scheme is not for that, right?
if you see this scheme, basically when we talk about Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, they provide certain insurance in case if a bank is basically or declares bankruptcy, then people who have deposited their money, they will be given, like right now the limit is 5 lakh rupees they will be given. Similarly, जो banks आपके credit दे रहे हैं, loans दे रहे हैं, certain portion of that is also guaranteed by this, right? So यहाँ पे बात की जा रही थी will partially compensate the lender, और यहाँ पे DICGC will partially compensate the fintech platform. Again, fintech is not paying a premium to them, right? So this is also not the case. If we talk about FLDG, it is basically for fintech platform will compensate the lender for a portion of losses if a borrower defaults, right? And this is basically a flow chart. If you can understand what is happening over here, these fintechs have to work of finding the potential borrower, उन्हें customer ढूंढ के देने हैं. So it is helping the bank to find more customer, to reach out to the more customers. They have to give 5% डिपॉजिट ऑन टोटल लोन पोर्टफोलियो. जितना भी लोन उस ऐप के थ्रू किया जाएगा उसका 5% उन्हें मेंटेन करके रखना पड़ेगा एज अ डिपॉजिट, राइट? सो जो आपकी रजिस्टर्ड एंटिटी है, दे विल कलेक्ट कैश डिपॉजिट एफडी और बीजी इन फेवर एंड गारंटीज द फैसिलिटी. फिर वो क्या करेंगी, ये जो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, बैंक्स हैं, दे विल बेसिकली प्रोसेस द लोन, दे विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल प्रोसेस द लोन आफ्टर दे हैव द 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ द लोन विद देम, राइट? आरई अंडरराइट्स यूजिंग डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस. देन आरई क्या करेगा, पैसे को लैंड कर देगा. देन प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिकवरी एंड रिलेटेड सपोर्ट टू बी डिसाइडेड बिटवीन द आरई एंड एलएसपी. अब इसका ट्रैकिंग कौन करेगा, रिकवरी कौन करेगा, मॉनिटर कौन करेगा, ईएमआईज टाइमली पे हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ये बेसिकली दोनों के बीच में जो भी डिसीजन आएगा आरई और आपके फिनटेक के बीच में, वो दोनों अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि किसका क्या काम रहने वाला है. सो दिस इज द टोटल मैकेनिज्म ऑफ एफएलडीजी, राइट? एफएलडीजी इज गोइंग टू वर्क लाइक दिस. अगेन ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, क्या ये लोन फिनटेक दे रहे हैं? सो नो, these loans are basically given by RE only. They are lending the money. Banks or registered entities are lending the money, not the fintech. They are just the service provider who is connecting the borrower, that is the individuals or private entities, borrowers with the banks, right? So basically increasing their reach. Moving to the next question. Again a very simple question. If you guys have seen the previous year UPSC questions also, this has you have seen the third statement over there also, FII और FDI के बीच का difference. So as you all know, FIIs कौन से होते हैं, FPIs कौन से होते हैं, foreign portfolio investment. These are basically the investments coming from the foreign countries, right? If these investments in a corporate are higher than 10% of their total equity they own, so basically they get the managerial rights and they are considered as foreign direct investment. In case the corporate is not listed, then any investment in that unlisted company is considered as a FDI. ये आपको basic information है, आप लोगों को पता होंगी ये सारी की सारी चीजें. And in case of India, there was a dispute that these global depository receipts or your American depository receipts, they should be included in FDI or FII, right? There was a dispute in 2009-10 if you guys remember. या अगर आपने पढ़ा होगा तो ultimately the decision came out that these GDRs will be included in FDI. So third statement is correct over here. GDRs are part. GDRs क्या हैं basically? कोई भी Indian corporate जो इंडिया की मार्केट में listed है, if they want to sell their stocks in a foreign stock market, what they can do is they have certain people who brokerage this, they purchase these equities from India and they sell it on the foreign market, right? So in case if it is being sold in the European market, generally they are referred as GDR. If they are being sold in the American market, they are referred as American Depository Receipts, ADRs, right? So if this is happening, then it will be considered as FDI without any if and buts with respect to percentage and all. A foreign company forming a joint venture with an Indian company will be considered as FDI. That is also correct, right? अगर आप किसी के साथ joint venture में आ रहे हैं तो again FDI आपका basically है क्या, which is a long term investment generally considered for the where the money is not basically this is not highly volatile money. It is going to stay. They are going to bring money with them. They are going to invest in India, maybe in the brownfield, maybe in the greenfield projects, and they will bring technology with them, right? While in the case of FIIs, they generally invest in the stock market, in the shares, in the equities, or they might be investing in the bond market or the debt market of a country, right? So FIIs can invest in equity market but not in the debt market. That statement is wrong. Obviously they can invest in the debt market. It is allowed in India, right? So if you see only two statements are correct and the first one is wrong. Moving to the next question, again a very
basic question, but you must have seen it in the newspaper multiple times, right? We have recently made a change with respect to angel tax. Angel tax क्या है? Basically it's a income tax only. It is generally referred as angel tax. It is basically under section 56 of the income tax act. अब ये जो एंजल टैक्स है ये क्या होता है, इसे समझने के लिए इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंजल इन्वेस्टिंग, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. एंजल इन्वेस्टिंग क्या होती है? इट इज द सीड investors, or these are those investors which invest in a company or in an idea in the very primitive stage or very initial stage. इन्हें जनरली बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर्स, राइट? बिकॉज अभी कंपनी बेसिकली प्रॉफिट में नहीं है, या एक कंपनी है जिसका एक नेसेंट आइडिया है, उसमें कोई इन्वेस्ट कर रहा है इनिशियली उस आइडिया के बेसिस पे, या उस कंपनी को ग्रो कराने के हेल्प कर रहा है, सो दे आर रेफर्ड एज एंजल इन्वेस्टर. अब इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम थी विद रिस्पेक्ट टू दीज एंजल इन्वेस्टर्स, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, एंड दैट प्रॉब्लम वॉज दैट till few years back there used to be a problem that the angel investment that is coming from outside India is not taxed in India, while in case of angel investment coming in India and where the valuation is above the face value, I'll explain it to you कि above the face value का क्या मतलब है valuation, then the excessive amount that the company is receiving will be liable अंडर इनकम टैक्स एक्ट. उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज देयर इनकम. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा होता है, सपोज समवन हैज अ कंपनी हु हैज 100 शेयर्स, राइट? उसके पास 100 शेयर्स है, एंड दे बिलीव द बेसिकली देयर इज अ क्राइटेरिया थ्रू विच इट विल बी कैलकुलेटेड कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर. Suppose the net worth of a company, they calculate the net worth of a company with the objective, like whatever the infrastructure they have, whatever the kind of people they have, how much investment they have made. So उसकी एक valuation लगाई जाएगी कंपनी की. Suppose they have put a valuation कि इस कंपनी की जो valuation है वो 1 लाख रुपए है, राइट? मैं बहुत सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए छोटे नंबर ले रहा हूँ. सो 100 शेयर्स हैं जिनमें इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन है 1 लाख रुपए. तो एक शेयर की वैल्यूएशन क्या हुई? 1 शेयर विल बी इक्वल टू 1000 रुपीज. एक शेयर की वैल्यू हुई 1000 रुपीज. अब कोई एंजल इन्वेस्टर आता है विच इज रेडी टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इन दिस कंपनी, एंड दे हैड अ डील दैट इफ यू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इन अवर कंपनी, वी विल गिव यू शेयर्स, वी विल गिव यू 10% इक्विटी इन अवर कंपनी. अब ये लोग शेयर्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें एक्सपेंड करना है, इन्हें ग्रो करना है, दे नीड मनी, दे नीड फंडिंग फॉर दैट, और ये उसके लिए कुछ अपने शेयर्स उन्हें देंगे, राइट? बट यहाँ पे इफ समबडी इज पुटिंग 1 लाख रुपीज, तो एक्चुअली तो वो पूरी कंपनी ओन करना चाहिए, उसे 100 के 100 शेयर्स मिल जाने चाहिए. बट इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, दैट एंजल इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज, एंड द कंपनी हैज सेड दैट वी विल गिव यू 10% ऑफ आवर शेयर्स, विच इज मच हायर देन द फेस वैल्यू. ये जो 1000 रुपीज आई, इसे क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? इट इज जनरली रेफर्ड एज फेस वैल्यू. इट इज रेफर्ड एज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, राइट? अब यहां पे क्या हो रहा है कि आपकी एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपए है, तो आपको बेसिकली अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज, यू विल गेट ऑल द 100 शेयर्स. बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, दे आर गिविंग देम 10 शेयर्स फॉर 1 लाख रुपीज. दे आर गिविंग देम 10 शेयर्स फॉर 1 लाख रुपीज. सो यहां पे एक शेयर की वैल्यू क्या हो गई? 10,000 रुपीज, which is 9,000 higher than the face value, right? So अभी तक अगर इंडिया से कोई एंजल इन्वेस्टर है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, एंड इफ दे आर परचेजिंग द शेयर्स एट मोर देन अबव द फेस वैल्यू, विच इज बीइंग a formula has been given by the government to calculate the face value, right? So उससे अगर ऊपर कोई बाय कर रहा है, तो यहाँ पे 9,000 रुपीज पर शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, राइट? सो आपने 10 शेयर्स बेचे, सो यू हैव रिसीव्ड 90,000 रुपीज एक्स्ट्रा. सो ये जो छोटी सी एक स्टार्टअप है, दे विल हैव टू पे टैक्स ऑन दीज 90,000 रुपीज. दीज 90,000 रुपीज विल बी कंसिडर्ड एज देयर इनकम. बट यही केस जब फॉरेन से फंडिंग आ रही थी तो नहीं होता था, right, which was creating certain hurdles, or which was basically disproportionate with respect to Indian investors. So अब इसे uniform कर दिया गया है कि even if the funding is coming as an angel investor is coming from outside India, or the angel investor is coming from India, they both will be charged income tax under section 56, right? They both will be charged income tax under section 56, except in case of startups which have been registered by DPIIT एज अ स्टार्टअप, उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, राइट? बाकी सब जो भी आपकी स्टार्टअप नहीं है, उन सब के ऊपर ये अप्लाई होगा, राइट? सो यहाँ पे एंजल टैक्स क्या है आपका? एंजल इन्वेस्टर्स प्रोवाइडिंग फंड टू स्टार्टअप्स विच आर मोर देन 5 year old एंड आर प्रॉफिटेबल.
unlisted companies issuing shares at a price more than their fair market value, right? So इसे बोल रहे हैं कि यहां पे जो टैक्स लगेगा it will be the angel tax. Listed startups issuing shares for the foreign investors. So ये सारी गलत हो जाती हैं, right? So it will be C over here. Moving to the next question, very basic, very simple question. PPP के बारे में है, परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में है. परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिकली क्या होती है? इट इज अ वे टू कैलकुलेट और बेसिकली टू कंपेयर टू इकोनॉमीज or to compare their currencies, if you can say, or their purchasing power of the two economies. Purchasing power of the two economies मतलब you must have remembered, आपको एक बिग मैक बर्गर वाला एग्जांपल बताया गया होगा मैकडी का, या at present we use the concept of a basket of goods, right? So suppose if the same basket of goods is taken in USA and same basket of goods is taken in India, if somebody is able to buy the same basket of goods in USA for say $1, right, and in India they are able to buy the same basket for ₹60, then as per PPP the exchange rate should be $1 is equal to 60 rupees, right? क्योंकि ये जो $1 में आप यूएसए में खरीद सकते हैं वही चीज इंडिया में आप 60 रुपीज में खरीद सकते हैं. इट माइट बी ड्यू टू लेस इन्फ्लेशन, इट माइट बी ड्यू टू लेस प्रोडक्शन कॉस्ट, इट माइट बी ड्यू टू एनी अदर रीजन कि आप सपोज वहां पे इफ यू आर बाइंग 1 kg wheat and 1 liter of milk in $1, in India you might be buying the 1 liter of milk and 1 kg of wheat in 60 rupees. But हमारे मार्केट में क्या रेट चल रहा है? सपोज इन मार्केट वी आर सीइंग दैट $1 is equal to say 82 rupees. Right, so this is the market value, but as per PPP it should be this, right? So sometimes the GDPs or the country's economy are calculated on the basis of purchasing power parity, कि आप डायरेक्टली जो मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पे इकोनॉमीज को कंपेयर ना करके उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे करें. So how much a country's economy has developed, and if we see at PPP basis, Indian economy is doing much better as compared to the real GDP basis if we talk about, right? So यहाँ पे पहली statement क्या है? PPP exchange rate helps in comparing the standards of living between the two countries, which is correct, right? अगर आप यहाँ पे देखें कि इंडिया में if someone is earning 60 rupees, he will be above poverty line. अगर हम extrapolate कर लें जो आपकी तेंदुलकर कमेटी की लाइन दी गई है और उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर लें तो आज की डेट में it will come around this value only. Right, so if someone is earning $1 in USA and in India if he is earning or spending 60 rupees in a day, they are spending $1 in a day, then they both are basically equally rich, right? So this is a comparison that we can draw from here. Otherwise अगर आप इसे initial 82 की फॉर्म में करें तो in India the person is below poverty line as compared to if $1 is considered as a poverty line. One way of saying it, right? Then PPP takes into account the relative prices of goods and services in different countries. Again, we are taking the relative prices. So both the statement here are correct, but the second statement is not explaining that how it helps in comparing the standard of living, right? So it is not the correct explanation of the first statement, but both the statements are correct over here, right? So the answer will be B, where both statement 1 and 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Moving to the next question, with reference to digital rupee and unified payment interface, consider the following statement. UPI, it looks like that UPI is coming again and again. आज भी आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे UPI पे. In previous test also we have discussed once about UPI, right? So यहाँ पे जो UPI का कंपैरिजन हो रहा है वो आपका हो रहा है e-rupee के साथ, right? e-rupee के साथ कंपैरिजन हो रहा है जिसे हम बोलते हैं हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले यू नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? इट इज अ कंसेप्ट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ पायलट बेसिस इन इंडिया, जहां पे हमने बात की है दैट दिस इज बेसिकली ई-रूपी, RUPEE, ई-रूपी की मैं बात कर रहा हूं. इट विल बी अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब this rupee will be issued by RBI itself. Like all other currencies, like if you see in your wallet, you might be having 500 rupee note, 100 rupee note, you might be having 10 rupee note. Those are all hard currency. They have been printed by the RBI and they have been issued by the RBI. इसीलिए उस पर लिखा भी होता है issued by the government of India और साइन होते हैं RBI गवर्नर के, right? अब अगर हम वहाँ पे बात करें कि in a virtual format they are going to issue certain amount of currencies which will be referred as e-rupee or digital rupee, right? For this they will not print any hard cash to back it up,
राइट। जनरली क्या है कि हमारी कितना लिक्विडिटी है हमारी मार्केट में, वो कहीं ना कहीं उसका बेसिस आपको हार्ड करेंसी की फॉर्म में मिल जाएगा, तभी वो लिक्विडिटी है टोटल मार्केट के अंदर। बट हेयर इन दिस केस दे आर नॉट गोइंग टू प्रिंट दैट मनी, दे आर गोइंग टू डायरेक्टली इशू दिस मनी। RBI इज डायरेक्टली गोइंग टू इशू दिस मनी एंड इट विल बी पैक्ड as equal to 1 e-rupee will be equal to 1 rupee, that is the hard cash that you have. So equal pegging होगी इनकी। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, यहाँ पे 2-3 फायदे होंगे। पहला फायदा गवर्नमेंट को ये हो रहा है दैट दे डोंट हैव टू स्पेंड इन बेसिकली प्रिंटिंग दिस करेंसी और रिप्लेसिंग दिस करेंसी वंस इट गेट्स इनटू बैड कंडीशन। दूसरा फायदा गवर्नमेंट को ये हो रहा है दैट मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स दीज क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइंस और दीज डीरेगुलेटेड करेंसीज विच आर अवेलेबल in the form of virtual currencies. So government ने बोला कि this is a central bank digital currency which will be regulated by the central bank, but it will act just like cash. It will act just like cash. अब ये कैसे होगा सर? गवर्नमेंट कह रही है कि officially we will not track it. How they are not going to track it? What you can do is you can basically give your hard currency to a bank. You can get it converted into e-rupees and you will have a wallet. In that wallet, e-rupee will be given to you. Now this वॉलेट दैट इज लाइक योर पेटीएम वॉलेट, आपने जैसे देखा होगा ऑनलाइन वॉलेट जो होते हैं, सो उस वॉलेट में आपकी ये करेंसी डाल दी जाएगी। अब यहां से बैंक के ट्रांजैक्शन का काम खत्म हो गया एंड यू कैन बेसिकली ट्रांसफर दीज e-rupees दैट यू हैव टू एनीवन जस्ट लाइक यू पे इट इन द हार्ड कैश। आपके वॉलेट में 500 रुपए, आप एक ग्रोसरी शॉप पे गए, आपने कुछ चीज परचेज की, आपने 500 रुपए उसे दे दिए। सो गवर्नमेंट को नहीं पता चला कि किस आदमी ने इसको 500 रुपए दिए, राइट क्योंकि आपने कैश दे दिया। वो कैश आपने कभी एटीएम से निकलवाया था 6 महीने पहले, या आपके पास कहीं और से आया था, किसी भी मेथड से हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने अपनी करेंसी को ई करेंसी में कन्वर्ट करा लिया एंड नाउ यू हैव रिमूव्ड बैंकिंग इंटरमीडियरीज, क्योंकि बैंकिंग इंटरमीडियरीज क्या है, वो आपका ट्रांजेक्शन्स का हिसाब रख रहे हैं, जो कि यूपीआई के केस में होता है। यूपीआई में आपके बैंक अकाउंट्स लिंक्ड है, राइट। सो आपका जो भी पैसा ट्रांसफर हो रहा है, इट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। इंस्टेड ऑफ इट बीइंग ट्रांसफर्ड, UPI is doing nothing, but it is acting as an intermediary between these two banks, making this transaction possible. But ultimately, the money is moving from one bank account to another bank account. One account is getting debited, then the other account is getting credited. But in this case, what is happening? Now, bank has given you e-rupee, and now bank has subsided. Right? It is just like you have withdrawn certain cash from the bank, and now you have that in your pocket. Now you can pay it with the help of your wallet. You can give it to any shopkeeper and it will be directly reflected in his wallet, and nobody is going to record that, or no bank will be there, or no UPI platform will be there for it, right? इसे बोला जा रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, दैट इंस्टेड ऑफ पीपल यूजिंग डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज, जैसे कि आपका बिटकॉइन हो गया या आपका डॉज कॉइन्स हो गया या different we have numerous cryptocurrencies, they are all decentralized and government cannot track them, government cannot regulate them, and this can impact the monetary policy because government will not be able to measure the liquidity in the market, right? क्योंकि अगर आप bitcoins में डील कर रहे हैं, so it will increase the flow of cash in the market, but since it is in the form of bitcoins, government cannot measure it and it can lead to inflation, so it can impact our monetary policy. But in this case, the government knows that how much e-rupee they have issued, राइट। सो फॉर दैट दे नो कि हमारे पास टोटल हार्ड करेंसी प्लस ई रुपीज मिला के मार्केट के अंदर टोटल लिक्विडिटी कितनी है एक पर्टिकुलर पीरियड में, राइट। सो दे हैव दैट नंबर, दे ओनली विल नॉट बी नोइंग कि ये ई रुपी आज किसके वॉलेट में है या कैसे ट्रांजैक्ट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। ऐसा गवर्नमेंट का कुछ बताना है विद रिस्पेक्ट टू योर ई रुपी विच इज द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट। सो बहुत सिंपल सी चीज है कि यूपीआई क्या कर रहा है आपका, यूपीआई इज एक्टिंग एज अ इंटरफेस between two bank holders, right? So आपने suppose you have made a transaction from HDFC बैंक, आपका अकाउंट HDFC बैंक में, आपने किसी का UPI स्कैनर आपने स्कैन किया, उनका अकाउंट SBI में है, right? So money will move from HDFC बैंक to SBI, right? This is what is happening. It's an open platform and every other bank, many other companies are creating these interface where they are linking different banks on these interface. You can make payments, you can pay your bills. So ultimately क्या हो रहा है, वो पैसा किसी अकाउंट से किसी अकाउंट में मूव हो रहा है and all the transactions are accounted for. यहाँ पे क्या हो रहा है, in case of e-rupee, banks will issue or RBI will directly issue your e-rupee and it will be lying in your wallet or your e-wallet, just like you have a wallet
इट इज ई वॉलेट, आपके ई वॉलेट में रहेगा एंड ट्रांजेक्शन विल टेक फ्रॉम वॉलेट टू वॉलेट, right? And there will be no requirement of any bank as an intermediary, or you don't require a bank account for that, right? So यहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है और डिजिटल ट्रांजेक्शंस आप वर्चुअल करेंसी में कर पा रहे हैं, राइट? एंड दे विल बी डन जस्ट लाइक यू आर यूजिंग कैश. सो ये कैश का सब्सटीट्यूट है. इट इज वेरी सिमिलर टू कैश एंड द ओनली डिफरेंस दैट इट हैज इज कि ये आपको कैश जो है वर्चुअल फॉर्म में कैश है, राइट? इतना समझ आ रहा है. इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला है दैट वी विल नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दिस, जैसे आप बैंक अकाउंट में रखते हैं, सो दैट बिकॉज बैंक्स हैज एन एप्रीहेंशन दैट इफ CBDCs come into play, then if they are giving interest on those also, then people will stop using banking services, right? So RBI has made it clear that there will be no interest which will be paid. There will be no interest which will be paid on these e-rupees, right? So now let's look at the statements. E-rupee is a token representing legal tender, whereas UPI is not a legal tender. अब e-rupee मैंने अभी आपको बताया कि it is just like your currency. So if your currency is a legal tender, it will be a legal tender. So first is correct. UPI is not a legal tender. Obviously, UPI is just a interface. It has nothing to do with being a legal tender or not. वो रुपये की ही ट्रांजेक्शन, कैश की ही ट्रांजेक्शन हो रही है बेसिकली फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. Both UPI and e-rupee are liabilities of the Reserve Bank of India. अभी मैंने आपको बताया e-rupee will be issued directly by the Reserve Bank of India just like your currencies, right? So it will be a liability of the RBI. That is correct. But again UPI is not a liability, right? UPI is just an interface. So this statement is wrong because UPI is not a liability on RBI, right? Payment using the UPI requires intermediation of a bank, whereas payment using e-rupee does not. ये मैंने अभी आपको बताया ये पूरा concept, and this statement is correct. So only two are correct and the answer will be B. Moving ahead, moving to the next question. You must be seeing farmers distress. A lot of discussion is happening with respect to MSP, and not just this. You must have seen recently, we have seen the 13th ministerial conference of WTO happening, and the discussion with respect to fisheries, discussion with respect to public stock holding and peace clause and basically agreement on agriculture. इन सब के ऊपर अभी आपने बहुत सारे articles देखे होंगे. So the idea has been taken from there. Idea has been taken from the agrarian crisis that are happening in our country and their demand of legalizing MSP and coming out of WTO, right? So if you read the statements over here, India faces pressure at WTO to reduce its agricultural subsidies. Which of the following reforms in MSP system would best align? यहाँ पे always remember in economy when they say best align, there might be a possibility of a chance will be there कि ऐसा ना हो के ऐसा हो जाए, but जब आपको best suitable options देखने होते हैं, you have to be specific to that. Best align with its WTO commitments while minimizing adverse impacts on the farmers, right? While minimizing adverse impact on the farmers. पहली statement क्या है? Replacing MSP with a deficiency payment scheme based on market price. अब ये क्या concept है? This is being used in India, right? It is being used in the states like MP and Haryana, जहाँ पे वो differential price जो भी है उसे पे कर रहे हैं. अभी MSP के अंदर क्या होता है? Government is basically procuring from the farmers at a given fixed price, right? अब आप एक given fixed price पे दे रहे हैं irrespective of demand and supply, irrespective of production. So it is distorting the market, and anything which is distorting the market is not approved or is basically against WTO regulations, although there are certain things which have been, or certain measures which have been taken, or limits which have been given. If you guys know, there is a green box, there is a amber box, and there is a blue box subsidies. So certain subsidies can be given. Specifically when we talk about amber box, there is a provision of de minimis level. For developed countries it is 5% of your total production you can give in the form of subsidy, and for developing countries it is 10%. Right? Green box subsidies can be given, there is no limit on that. Blue box subsidies are related to the production, as you all know, right? अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हम MSP की बात करते हैं, MSP is basically why it is market distorting, if we can say. यहाँ पे आप market prices, demand और supply which defines the market price, उसके against जाके you have already fixed the price to provide a basic minimum amount to the farmers, right? जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि A2 plus FL जो हमने बात की थी and all those things. सो वहीं पे आपका ये जो प्राइस है इसे फिक्सेट कर दिया गया, राइट?
A2 plus FL plus 0.5. If you guys don't understand all this, you guys can go check the previous discussions. If you guys want to read it in detail, you guys can go and check the Beyond Classroom program which is there on the farmers distress, which was conducted by Next IS. So वहाँ पे सारी चीजें आपको explained की हुई हैं and you can go through it. So replacing MSP with a deficiency payment scheme based on market price. So यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट डायरेक्टली फार्मर से प्रोक्योर कर रही है, राइट, एट अ फिक्स्ड प्राइस, एट अ फिक्स्ड प्राइस. और ये फिक्स्ड प्राइस क्या है, ये एमएसपी है जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है बिफोर, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है बिफोर द हार्वेस्टिंग टेक्स प्लेस और बिफोर द सीजन कम्स. लाइक फॉर राबी क्रॉप, फॉर खारिफ क्रॉप एंड फॉर योर other crops, there are total 22 crops that are there. If you include sugarcane, 23 crops that are there, for which government provides MSP. वो एक फिक्स प्राइस बता देती है, फिर उसके बाद फार्मर्स डिसाइड करते हैं कितने लोगों को कितना ग्रो करना है. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो महाराष्ट्र, एमपी और हरियाणा में किया जा रहा है, गवर्नमेंट सेड दैट वी कैन नॉट प्रोक्योर ऑल द क्रॉप्स, वी डू नॉट नीड ऑल दीज क्रॉप्स इन अवर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पीडीएस सिस्टम के अंदर हमें सबकी जरूरत नहीं है, इतनी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है. सो दे हैव सेड दैट यू गो एंड सेल इट इन द मार्केट, राइट. You basically, it can happen only in those places जहाँ पे आपकी जो APMC मंडीज हैं, they are well registered, they are well documenting all the things. कितने लोग किसने दिया, उसका कितना फार्म लैंड है, उस फार्म लैंड पे कितना ग्रो होना चाहिए था, एंड उसके बेसिस पे आपका प्राइस, गवर्नमेंट ने एक प्राइस डिसाइड कर लिया कि ये MSP टाइप का प्राइस रहने वाला है. आपने मार्केट में बेचा, इफ द प्राइस इज लेस देन व्हाट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, देन यू कैन रीच आउट टू द गवर्नमेंट एंड गेट द डिफरेंस ऑफ दैट, राइट. सो इससे क्या हुआ, मार्केट डिस्टॉर्ट नहीं हो रही है. मार्केट में डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे प्राइस कम है तो लोग कम प्राइस पे ही बेच रहे हैं और गवर्नमेंट से एज अ फॉर्म ऑफ सब्सिडी दे आर टेकिंग द मनी. मार्केट में अगर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, इफ द डिमांड इज हायर एंड द सप्लाई इज लेस, इफ द प्राइसेस आर हायर, सो फार्मर्स विल सेल इट डायरेक्टली इन द मार्केट एट अ हायर प्राइस देन द प्राइस कमिटेड बाय द गवर्नमेंट, राइट. सो ये एक तरीके से लेस मार्केट डिस्टॉर्टिंग है एंड इट इज बेनिफिशियल टू द फार्मर्स ऑल्सो, क्योंकि उन्हें एक फिक्स्ड इनकम मिलना तय हो गया है कि इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा. इससे कम होगा तो गवर्नमेंट पे करेगी, इससे ज्यादा होगा तो वो आपका, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Linking MSP calculations solely to domestic input cost without considering global prices. Again, though we have basically the formula is fixed and we are talking about the domestic consumption in case of MSP, but अगर हम उसे global prices से हटा दें, हम उसे market prices से हटा दें, then again it will become a market distorting thing, राइट. क्योंकि अगर ग्लोबली उसकी प्रोडक्शन कम हुई है तो मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो सकता है, ग्लोबली उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है तो मार्केट में प्राइस कम हो सकता है, बट उसकी वजह से इंडिया में उसका प्राइस फिर भी ज़्यादा रहेगा. सो अगेन डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट ब्रेक हो रहा है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. रिस्ट्रिक्टिंग MSP बेस्ड प्रोक्योरमेंट क्वांटिटीज टू लेवल्स बिलो डोमेस्टिक कंजम्पशन नीड. अगेन अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है कि आपने बोला कि MSP में अभी तो जैसे कि कुछ क्रॉप्स के लिए देयर इज अनलिमिटेड, राइट. वट एवर क्रॉप्स यू वांट टू गिव अंडर MSP, गवर्नमेंट हैज टू टेक फॉर एग्जांपल, राइट, इन द केस ऑफ, राइट, लाइक राइस एंड व्हीट. यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपकी डोमेस्टिक कंजप्शन नीड्स हैं उसको MSP बेस्ड प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी को उससे कम रखा जाए. अब अगेन यहाँ पे क्या होगा, सपोज इफ देयर इज हाई प्रोडक्शन है, then also the MSP, the market rates will be lesser. Even if you are procuring that much amount which is required for domestic consumption, that will be procured at a higher price, which is again market distorting, right. So ये भी आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाता है. Expanding MSP coverage to export oriented agriculture products like fruits and spices. अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, अभी तक तो हम सिर्फ डोमेस्टिकली मार्केट में प्राइसेस को डिस्टॉर्ट कर रहे थे, जिसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा, राइट. जैसे कि लोग बाकी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, पीपल विल नॉट परचेज दैट इफ इट इज एट अ चीपर प्राइस इन इंडिया. इफ द प्राइसेस आर हायर देन मोर पीपल विल ट्राई टू परचेज इट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड गवर्नमेंट विल बी गिविंग द प्राइस हायर टू द पीपल, राइट. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों के लिए जैसे कि आपके फ्रूट्स, पेरिशेबल गुड्स, स्पाइसेस, इनके लिए हम एक्सपोर्ट जो किए जाते हैं उन पे भी MSP दें, राइट, विच इज बेसिकली लीगलाइजिंग MSP ऑन ऑल द क्रॉप्स काइंड ऑफ अ थिंग. बट दिस इज अगेन वेरी मार्केट डिस्टॉर्टिंग, नॉट जस्ट इंडियन मार्केट बट द ग्लोबल मार्केट को डिस्टॉर्ट करेगी वो, राइट, विच कुड बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. सो अगेन दैट इज नॉट समथिंग विच इज सजेस्टेड ओवर हियर. सो ओनली वन इज करेक्ट, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Interim budget 2024-25 announced certain economic railway corridors under PM Gati Shakti. Which of the following have been included in the list? If you have seen the discussion on budget, if you have seen the again beyond classroom discussion on budget, आपके लिए this was a very simple question. Just for a quick revision, let me tell you
the few important features or few important outcomes of the budget or the interim budget that has been presented by the government. Interim क्यों है? Because we are going to see elections in May, right? Or we are going to see elections in April and May, and that is why the interim budget has come up. अब इस इंटरिम बजट में कुछ चीज़ें आपको जो नोट रखनी चाहिए, दोज थिंग्स आर लाइक व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट एंड व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट नंबर्स. सो फॉर FY25 फिस्कल डेफिसिट टारगेट इज ऑफ 5.1%. फॉर दिस ईयर वी हैड अ टारगेट ऑफ 5.9% एंड द रिवाइज टारगेट हैज बीन पुट एट 5.8%, विच इज अ गुड न्यूज़ फॉर अस. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आगे दिखाऊंगा कि फिस्कल डेफिसिट कम होने से क्या फायदे हो रहे हैं, राइट? बिकॉज ऑफ दिस ओनली दैट क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड. जब हमारा फिस्कल डेफिसिट 5.9 की जगह 5.8 आया, इट इम्पैक्टेड सर्टेन मार्केट्स इन इंडिया, इट इम्पैक्टेड और फ्यू आर्टिकल्स यू माइट हैव सीन इन द न्यूज़पेपर रिगार्डिंग दिस. सो पहला पॉइंटर आपको समझना है कि अभी इस साल के लिए फिस्कल डेफिसिट बोला गया है 5.8%, नेक्स्ट के लिए 5.1%, एंड फॉर 2026 इट विल बी 4.5%, which was the target which was given after COVID-19. Because of high fiscal deficit due to COVID-19, the government has to go for expansionary policies and the spending to basically boost the market again. So हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया था, उसे हम धीरे धीरे वापस से 4.5 करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन इन लेटर फेज आफ्टर दैट वी विल अगेन टारगेट फॉर 3%, जो कि हमारे पास पुरानी रिकमेंडेशन है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने फिर से बढ़ाया है. लास्ट ईयर द कैपिटल एक्सपेंडिचर वॉज 10 lakh crores, एंड आउट ऑफ विच वी हैव able to achieve the target of 9,50,000 crores. So many people were expecting that since we were not able to achieve the capital expenditure that we proposed in our last budget, we might see a certain reduction or you might see it kept constant. But for a change, the government has increased it, and they have increased it by 11.1% to 11.1 lakh crore rupees, right, which comes out somewhere around 3.4% of our GDP, which will be done in the form of capital expenditure, right. ये दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं. उसके अलावा अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, सो एक उन्होंने बोला है कि वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग 3 कॉरिडोर्स और वी विल बी फोकसिंग ऑन कंस्ट्रक्टिंग मेजर 3 रेलवे कॉरिडोर्स. पहला रेलवे कॉरिडोर उन्होंने बताया एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर. दूसरा उन्होंने बताया हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर. जहां पे हाई ट्रैफिक है वहां पे एक स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे. एनर्जी मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर्स जस्ट लाइक फ्राइट कॉरिडोर्स, डिफेंस कॉरिडोर्स वी हैव कंस्ट्रक्टेड, उस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे. एंड द थर्ड कॉरिडोर दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट is basically your port connectivity corridor, right? Not steel and fertilizer, it is port connectivity corridor, which will help us in improving our exports or connecting to the ports, which will help us in improving our exports. So ये 3 corridor बोले गए, out of which 2 are correct, right, and the third one will be port connectivity corridor, right. So answer will be 1 and 2. इसके अलावा और क्या चीज़ें बोली गई हैं, जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन. आपको बोला गया है कि 40,000 रेल कोचेज, नॉर्मल रेल बोगीज विल बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत रेल कोचेज, अगर मैं रेलवे की बात करूं तो, राइट. देन दे हैव टॉक्ड अबाउट एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो एंड नमो रेल, दैट इज रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अदर cities also, as we have seen the metro is expanding, RRTS will be expanded soon. Then in PM Awas Yojana they have talked about that we are very near for achieving our target under PM Gramin Awas Yojana, which is of 3 crore houses, and after that they have said that in the next 5 years we will construct 2 crore more houses under PM Awas Gramin Yojana. So उसे एक्सपेंड किया गया है अगले 5 साल के लिए, और टारगेट को बढ़ाया गया है कि 2 करोड़ नए हाउसेज और बनाए जाएंगे. सोशल सेक्टर में अगर हम बात करें तो लखपति दीदी, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट दिस, सो लखपति दीदी स्कीम का जो टारगेट है उसे एनहांस किया गया है फ्रॉम 2 crore लखपति दीदीज to 3 crore लखपति दीदीज, राइट. एंड वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड 1 crore लखपति दीदीज इन अवर कंट्री, right, which is basically we have reached out to 83 lakh self-help groups with 9 crore women working in them, right. Then if you talk about Ayushman Bharat has been extended for Asha workers and Anganwadi workers. And if you talk about environment, then they have come up with rooftop solarization, जिसके लिए अभी आपने देखा होगा कि we have seen a lot of things changing in last 1 month with respect to this rooftop solarization. So ये जो rooftop solarization है, इसे बेसिकली फर्स्ट टाइम बोला गया था ऑन 22 ऑफ जनवरी, जब आपकी राम मंदिर बेसिकली इनॉग्रेशन हुआ था. उसके बाद पहली चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐलान किया था, इट इज़ टू बेसिकली रीच आउट और टू हैव 10 million हाउस होल्ड्स विद रूफटॉप सोलराइजेशन, 1 crore हाउस होल्ड्स विद रूफटॉप सोलराइजेशन.
सो उसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। उसका थोड़ा सा बेसिक्स बताया गया कि कैसे ये वर्क करेगी बाय द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एंड इट वाज अ डिफरेंट आइडिया। देन recently on 29th of February government has come up with प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उसके अंदर जो डिटेल्स दी गई दैट डिफरेंट फ्रॉम दैट, एंड दैट इज व्हाई यू हैव सीन दैट इन लास्ट 1 month देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन हैपनिंग ऑन इट, सो रीड अबाउट इट, राइट। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राइट। सो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लिमिट जो है 2 किलोवाट एंड 3 किलोवाट तक के लगाए जाएंगे, राइट। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स, बट वो डिपेंड करेगा, वो सबको नहीं मिलेगा। सेविंग्स की बात की जा रही है 15,000 to 18,000 रुपीज़ एनुअली। यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी आपको, राइट। सब्सिडी पहले जो प्लान था वो था कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट ही बियर करेगी कॉस्ट, बट अब है कि 60% विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी इफ इट इज अप टू 2 किलोवाट। इफ यू आर हैविंग सोलर पावर सोलर रूफटॉप सिस्टम of up to 3 kilowatt, so 2 और 3 kilowatt के बीच में जो रहने वाला है उसका 40% will be paid by the government. So the amount that has come up is, if you are having installing 1 kilowatt, it will be 30,000 rupees subsidy, 2 kilowatt 60,000 rupees subsidy, 3 किलोवाट के लिए जो आपका रहेगा उसके लिए जो सब्सिडी रहेगी दैट विल बी अराउंड 78,000 रुपीज़, राइट। रिमेनिंग अमाउंट या तो आप अपनी जेब से दे सकते हैं, एंड इफ यू डोंट वांट टू गिव इट देन यू कैन टेक अ लोन, और जो लोन है वो आपको फिक्स कर दिया गया है कि जो भी रेपो रेट होगा उससे 0.5% अबव दिया जाएगा। सो एट प्रेजेंट रेपो रेट इज 6.5%, सो द लोन विल बी एट 7%, राइट। एंड उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, किस किस को मिलेगी, कौन कौन बेनिफिशियल होंगे, एंड ऑल दोज थिंग्स। पहले उन्होंने किसी भी सोलर से रिलेटेड या फिर सोलर एनर्जी से रिलेटेड किसी भी चीज़ में सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए, और उनके पास अपना घर होना चाहिए, राइट। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऐसी बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बताए गए हैं। सो अगेन इफ यू वांट टू वॉच, देयर इज अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस स्कीम इन द recent beyond classroom discussion. You can go and refer to that if you want to have a detailed discussion on that. Apart from this, now moving ahead, the second thing that has been done with respect to environment is basically viability gap funding for wind energy. Offshore wind energy के लिए viability gap funding की बात की गई है for up to 1 gigawatt projects, right? उसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफेक्शन का टारगेट अचीव करने की बात की गई है 100 मेट्रिक टन्स तक। कोल लिक्विफेक्शन और गैसिफिकेशन करने की बात की गई है बाय 2030, राइट। ये टारगेट रखा गया है। देन फेज्ड मैनर में मैंडेटरीली क्या किया जाएगा, जो आपकी कंप्रेस्ड बायोगैस है उसे मिक्स किया जाएगा सीएनजी और पीएनजी के अंदर, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो ट्रांसपोर्टेशन कार्स में यूज होती है, एंड जो आपके घर में एलपीजी आ रही है पाइप्ड नेचुरल गैस, उसके अंदर कंप्रेस्ड बायोगैस को मिक्स किया जाएगा, राइट। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स फ्रॉम एनवायरमेंट पोर्शन। इफ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी तो वहाँ पे 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की बात की गई है, विच विल बी फोकसिंग फॉर डीप टेक टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस पर्पस, राइट। एंड इट विल बी बेसिकली गिविंग loans at a zero rate or at a very low rate, and the fund will be basically lasting with a 50-year interest free loan एक सेटअप किया जाएगा। We are yet to see what kind of scheme is going to come about. इसके अलावा ज्ञान पे फोकस किया गया है, ये बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान क्या है जो इस बजट में फोकस किया गया है। फर्स्ट इज गरीब, जहाँ पे पॉवर्टी की बात की गई है। दे हैव गिवन सर्टेन नंबर्स कि हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो 23% से रिड्यूस होकर 11% पे आ गया है, एंड वी आर डूइंग सो एंड सो। बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, सो फैक्ट्स एक बारी आप देख सकते हैं। देन फोकस इज बेसिकली ऑन यूथ, दैट इज युवा, जो आप लोग हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, दोज पीपल, उनके ऊपर बात की गई है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, राइट। देन दे आर टॉकिंग अबाउट अन्नदाता विच आर फार्मर्स, राइट, उन्हें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। एंड एट लास्ट एन इज फॉर नारी शक्ति विमेन, राइट। सो ये 4 कंपोनेंट है ज्ञान के, जस्ट गो थ्रू इट वंस, राइट। सो ये क्वेश्चन हो गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। तो with reference to Indian economy, consider the following: reduction in inflation, increase in cost of production, increase in export competitiveness. How many of the above are likely impact of depreciation of rupee on the Indian economy? अब देखो depreciation of rupee को अगर आप समझते हैं कि उसके impact क्या आएंगे, तो this question is nothing to you. बहुत ही simple applied question दिया गया है, generally how this UPSC ask these kind of questions. अब depreciation of rupee हो रहा है, rupee suppose today $1 is equal to 80 rupees. सो जब मैं बात करूंगा कि रुपये का डेप्रिशिएशन हुआ, इट मीन्स कि $1 इज इक्वल टू से 100 रुपीज़। इट मीन्स कि डॉलर के आगे रुपये जो है वो डेप्रिशिएट कर गया, उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इसे समझते हैं। पहला है रिडक्शन इन इन्फ्लेशन। क्या इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा इससे? इससे आपको 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है।
पहली चीज, अगर डेप्रिसिएशन इन रुपी हो रहा है और अगर हम सिर्फ एक इंडिया को एक क्लोज सिस्टम लें जहां पे प्रोडक्शन जो हो रही थी और वो इंडिया में ही कंज्यूम हो रही थी, राइट, और हम बाहर से कुछ नहीं ले रहे थे, सब कुछ इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे थे, वी वर सेल्फ रिलायंट, in that case there will be no impact. But we are not living in such a case. We are not living in a closed economy. So if you see that we have been importing a lot of raw material, we have been importing a lot of goods from outside which are acting as a raw material to the industries. We are importing certain essential commodities like crude oil which is helping in the transportation. अगर अब हम बाहर से कोई भी चीज लेते हैं तो पहले वो अगर $1 की आती थी तो we were giving 80 rupees for it. अगर वो आज भी $1 की ही है ग्लोबल मार्केट में, लेकिन हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो गया, सो वी विल बी पेइंग 100 रुपीज फॉर इट, विच मीन्स कि हमारे कंट्री के अंदर क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि हर चीज हमें महंगी पड़ेगी जहां पे भी रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड या ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं, जो कि सारी चीजें महंगी हो जाएंगी क्योंकि ये सारी हम इंपोर्ट कर रहे हैं. सो इन ऑल दीज केसेस वी विल सी इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड नॉट रिडक्शन इन इन्फ्लेशन. सो फर्स्ट इज रॉन्ग. नाउ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगेन, increase in cost of production will take place for those items which are using raw material, which is imported raw material, which are using raw material which is coming from outside India, right? So in that case जो पहले 80 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, अब वो 100 का खरीदेंगे. 100 का अगर वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो पहले वो अगर किसी गुड को 100 रुपीज पे बेच रहे थे अब बनाने के बाद, नाउ दे विल बी सेलिंग इट से फॉर 120 रुपीज. सो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट. सेलिंग में भी कॉस्ट, कंजप्शन में भी कॉस्ट ऑफ इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन में भी कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है. सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन, क्रूड, बिकॉज वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड, सो वहां से भी आप देखें तो इट विल बी करेक्ट, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. देन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस. अब ये इंडिया के ऊपर पहले भी एलिगेशंस लगाए गए थे, राइट, कि लाइक इंडिया इज बेसिकली मैनिपुलेटिंग इट्स करेंसी एंड डेप्रिशिएटिंग इट फॉर अ रीजन. क्यों क्या फायदा होता है इंडिया को डेप्रिशिएट करने से? सो डेप्रिशिएट करने से इंडिया का फायदा होता है दैट आवर एक्सपोर्ट्स बिकम मोर कम्पिटिटिव. हाउ आवर एक्सपोर्ट्स बिकम मोर कम्पिटिटिव? सो अगर हम कोई चीज इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पहले 80 रुपीज में प्रोड्यूस हो रही थी एंड हम उसे बाहर $1 में भेज रहे थे. अभी भी वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रही है एंड 80 रुपीज में ही हम उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड वी आर सेलिंग इट आउटसाइड इंडिया, सो वी विल बी गेटिंग $1 फॉर इट. बट जो हमें $1 मिलेगा उसकी इंडिया के अंदर वैल्यू ज्यादा हो गई है, राइट. पहले उस $1 की वैल्यू थी 80 रुपीज ओनली, सो अब हमने उसे $1 में ही बेचा बट वी विल बी गेटिंग 100 रुपीज. सो इट इज मेकिंग कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल. उनका प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि उन्होंने जो सारा रॉ मटेरियल था, सारी चीजें थी, वो इंडिया की यूज की थी. सो डेप्रिशिएशन क्या कर रहा है, आपका एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहा है, right? So this is correct. So only 2 are correct, that is 2 and 3. Moving ahead, with reference to payment bank, consider the following activities: acceptance of saving deposit, acceptance of fixed deposit, issuance of credit card, distribution of financial products like mutual fund units. Which of the above activities can be undertaken by payment bank? Why this question has been asked? You have recently seen that RBI has basically taken action against Paytm payment banks, right? So this has brought payment banks into again limelight. Payment banks is a concept which was given by the Nachigan-Bor committee, right? It came into existence. Initially 11 banks applied for the license of payment bank, but out of these 11 banks 5 banks surrendered their license once they are given. They said कि हमें नहीं आना इस business के अंदर because the profitability is very less in this business. I'll just tell you कि ऐसा क्यों है. So only 6 payment banks are working in India, out of which recently Paytm payment bank has been basically closed by the transactions or the working has been closed by RBI. So 5 are actually officially working, right? Like your Airtel payment bank, Paytm payment bank we had, Fino we had, right? Fino payment bank. तो इस तरीके के आपको examples देखने को मिलेंगे. We have certain payments bank. तो payment bank में होता क्या है? Basically these banks have been, or this idea has been given to basically increase the banking, reach of banking in those areas where there are no bigger banks located, because there is less population to use those banking facilities or the expenditure is higher and the people are less, so benefits will be less. So ऐसे areas में जहाँ पे banking facilities नहीं है या बहुत कम है, वहाँ तक reach बढ़ाने के लिए ये small payment bank का concept लेके आया था, small finance bank and payment banks का concept आया था. Payment banks के अंदर they can take deposits up to 2 lakh rupees and there is one condition that they cannot, इन्हें risk free रखा गया है. Payment banks को risk free रखने के लिए they are not allowed to lend money,
right? They are not allowed to issue credit card, they are not allowed to give loans, because of which these banks are saying that we are not becoming profitable. You have changed rules for small finance bank, now it's time to change rule for payment bank also, to make them more profitable, to make them basically sustain the things. Now it's been years and they are sustaining, but they need to expand their business, they need to have better growth, they need to have better profits. अभी इनके पास क्या provision available है, that they can take deposits up to 2 lakh rupees. Out of that 70% they have to invest in basically secured things like your government securities and or maybe some other bigger banks, with some other bigger banks, जहाँ से उन्हें एक fixed return मिलती रहेगी. And due to this they cannot basically give you they cannot give land, they cannot give loans, they cannot issue credit card, right? So acceptance of saving deposit is there. मैंने बताया 2 लाख रुपीस तक की लिमिट है. ये टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, दे कैन नॉट टेक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स. एंड एक चीज़ और इन्हें बोली गई कि सिंस यहाँ पे आपकी कोई भी रिस्क नहीं है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स अपने यहाँ से सेल कर सकते हैं लोगों को, सिंस यू आर नॉट गोइंग टू बियर द लॉस. अगर म्यूचुअल फंड की वो यूनिट्स का प्राइस नीचे जाता है सो द कंज्यूमर विल बी बियरिंग द लॉस. सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड यूनिट्स इज अलाउड, राइट. सो यहाँ पे कोई भी रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज ये बैंक नहीं करेंगे, रिस्क को मिनिमम रखा गया है, राइट. सो ओनली 2 आर करेक्ट, राइट. आई हैव गिवन यू the activities which are permitted and the activities which are not permitted. So they can take they can accept demand deposits in the form of saving and current account up to 2 lakh rupees. Money received as deposit can be invested in secure government securities only in the form of SLR, right. This must be amount to 75% of demand deposit balance. The remaining 25% is to be placed as time deposit with other scheduled commercial banks. So वो भी ये खुद नहीं ले सकते हैं time deposit, but अपना जो 25% बचा हुआ है वो other scheduled bank के पास they have to basically put it as a time deposit and 75% जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में SLR की फॉर्म में रखना पड़ेगा. Payment banks will be permitted to make personal payments and receive cross border remittances on the current account, right. So current account के अंदर ये क्या कर सकते हैं, they are permitted for personal payments and receive cross border remittances. It can issue debit cards, not credit cards. क्या नहीं कर सकते हैं, payment banks receive a differentiated bank license from RBI and hence cannot lend, they cannot give loans, right. Payment banks cannot issue credit cards, they cannot accept time deposits और NRI deposits. NRI deposit और time deposits दोनों नहीं ले सकते हैं. It cannot issue loans, it cannot set up subsidiaries to undertake non-banking financial activities, right. So these are certain activities which are permitted, these are certain activities which are not, right. Moving ahead, the concept of Goldilocks in economy, right. Goldilocks economy क्या है? Basically this concept we have recently seen in the month of November, December in the newspapers. When RBI has continuously taken a stand, जहाँ पे वो हमारी फिक्स GDP ग्रोथ बता रहे हैं पूरे साल में, they are not changing any repo rate or any other rate, they are saying that the inflation is in control and is basically fixed almost. So ये एक ऐसी condition है, it's a in ideal case if you talk about Goldilocks situation, it is basically in economy it is a condition जहाँ पे there is the economy is not too hot or not too cold, राइट. इसका मतलब क्या है कि उस इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं है और इन्फ्लेशन बहुत कम भी नहीं है. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको रेपो रेट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत कम नहीं है मतलब आपकी ग्रोथ जो है वो फ्लैट नहीं है, वो एक ऑल्दो यू आर नॉट ग्रोइंग एट अ वेरी फास्टर पेस विच बेसिकली अगर आप बहुत फास्टर पेस से ग्रो करते हैं तो इट ब्रिंग्स इन्फ्लेशन. आप बहुत स्लो या फ्लैट ग्रोथ भी नहीं है, यू आर बेसिकली ग्रोइंग एट अ ऑप्टिमम लेवल. एंड इन दिस सिनेरियो व्हाट हैपन्स, आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल है, आपकी ग्रोथ जो है वो एक मीडियम पाथ फॉलो कर रही है, ना तो बहुत एक्सेसिवली ग्रो कर रही है आपकी इकोनॉमी, ना बहुत एक्सेसिवली डाउन हो रही है आपकी इकोनॉमी, या रिसेशन की तरफ आप मूव नहीं कर रहे हैं. एंड यहाँ पे आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली इन द आइडियल केस देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, बट इन केस ऑफ इकोनॉमीज इट इज़ वेरी लो अनएम्प्लॉयमेंट, लो इन्फ्लेशन, लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग इज बेसिकली आइडियल. इस कंडीशन को बोला जाता है गोल्डीलॉक इकोनॉमी, राइट. सो गोल्डीलॉक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो जीडीपी ग्रोथ, नो, राइट. आइडियल कंडीशन ढूंढिए इसमें, लो इन्फ्लेशन, लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड मॉडरेट जीडीपी ग्रोथ, दैट इज करेक्ट. यही मैंने अभी आपको बताया, हाई इन्फ्लेशन, मॉडरेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई जीडीपी ग्रोथ. हाई जीडीपी ग्रोथ, लो फिस्कल डेफिसिट एंड अप्रिशिएटिंग रूपी,
राइट। अब हमने बात की कि दिस इज बेसिकली द कंडीशन विच आर टॉकिंग अबाउट। आइडियल केस में अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जीरो होगी, बट इन इकोनॉमी इफ दीज थिंग्स आर ऑल बेसिकली मैनेज्ड, इसे बोलते हैं गोल्डीलॉक्स सिचुएशन। ये जनरली इकोनॉमीज जब ग्रो करती हैं तो एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए इकोनॉमीज ऐसा फेस करती हैं कि जहां पे इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट इकोनॉमी यू विल गेट अ सर्टेन kind of fixed returns over your investments and there will be no up and downs in that, right? उस condition को generally refer कर दिया जाता है Goldilocks, right? Let's move to the next question. Lower borrowing cost of the government, increase in private investment, higher market interest rate. क्या है ये सब? How many of the one above can be likely consequence of reduced fiscal deficit? So जो अभी मैंने आपसे बजट में बात की, ये उसी से basically inspired है, उसी से related जो articles आए थे. Now what we have seen कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो अगर हम अपना टारगेट या टारगेट से कम में रह रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दैट गवर्नमेंट इज बोरोइंग लेस, गवर्नमेंट इज बोरोइंग लेस, विच मीन्स दैट वी आर इन अ सिचुएशन जहां पे हमें बोरोइंग्स कम करनी पड़ रही है, इन फ्यूचर हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स कम करनी पड़ेंगी, प्रिंसिपल कम रीपे करना पड़ेगा, एंड वी आर स्टिल ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस. सो यहां से क्या होता है, इफ योर फिस्कल डेफिसिट is basically in the targeted amount, if it is basically not increasing, then there are certain credit rating agencies which give rating, which will put you or which will try to give you better ratings. उसकी वजह से क्या होगा, that more and more people will be investing in your country, more and more people will be eager to invest in your country, even if the amount of return is less, right? कहीं पे अगर आपको 5% रिटर्न मिल रहा है, इंडिया में 4 मिल रहा है, so you will not go to Pakistan जहां पे आपकी इकोनॉमी अनसर्टेन है, but they are giving 5% interest. You might think of going to India जहां पे interest rate 4% है, but you know that it's a stable economy, they have all the economic parameters are good and their credit rating is good. यहाँ पे default होने के cases chances कम है, राइट? सो दिस इज वन बेनिफिट, जब आपका फिस्कल डेफिसिट कम होता है तो आपका क्या है कि वहां पे बोरोइंग गवर्नमेंट लेस करेगी, और बोरोइंग अगर गवर्नमेंट लेस कर रही है तो इट मींस कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो इनफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है और इनफ एक्सपेंडिचर करने के लिए उसे जो बीच का गैप है वो कम होता जा रहा है, right? In this case, what happened in the case when the budget came out and we have basically reached to 5.8% and the target was 5.9%, it was taken positively by the market, and जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड थी वो डिक्रीज हो गई. अब आपको याद होगा कि मैंने पिछले से पिछले पेपर में शायद वी हैड द डिस्कशन कि बॉन्ड यील्ड बॉन्ड प्राइस के बीच में कैसे इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ कर्व, उनके बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है. वी डिस्कस्ड कि कूपन रेट क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, एंड ऑल दोज थिंग्स. अब जब बॉन्ड यील्ड कम हुई उसका मतलब क्या है, दैट पीपल आर रेडी टू बाय इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इवन एट अ लेसर इंटरेस्ट, राइट? बिकॉज दे आर मोर सिक्योर और दे हैव मोर ट्रस्ट इन दैट. इससे फायदा क्या होगा कि नाउ गवर्नमेंट कैन इशू न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट अ लेस कूपन रेट. अब वो कम कूपन रेट पे इशू कर सकती है, एंड इफ दे आर इशूइंग इट एट अ लेस कूपन रेट, सो बेसिकली व्हाट विल हैपन दैट इट विल बेसिकली हेल्प इन डिक्रीजिंग द बोरोइंग एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एज सच, कि जो उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो कम पे करना पड़ेगा. सेकेंड केसेस जब गवर्नमेंट खुद कम बोरोइंग कर रही है फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्टर, या तो आप इंटरनल इंडिया के अंदर से बोरोइंग कम कर रहे हैं या एक्सटर्नल, अगर आपका फिस्कल डेफिसिट कम है तो बोरोइंग्स कम हो रही हैं. बोरोइंग्स अगर कम हो रही हैं तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग दैट एक्सेसिव मनी इज देयर इन द मार्केट विच कैन बी यूज्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स, और देयर इज इनफ मनी फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स टू बोरो इट. नाउ सिंस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कमिंग डाउन, so the borrowing rates will be lesser even for the corporates also, right? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर वो यील्ड को कम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेट्स हैं वो जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी से थोड़ी सी यील्ड ज़्यादा देती हैं टू एंटरप्राइज कस्टमर्स, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, दे आर नॉट दैट स्टेबल, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, राइट? सो उनका भी क्या होगा, वो अगर उसे इफ दे टेक बेस एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड दे से गिव 100 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा, सो वो क्या होगा, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कूपन रेट या यील्ड कम हो रहा है सो उनका भी कम होगा, तो प्राइवेट सेक्टर विल बी गेटिंग इनफ फंडिंग, राइट? अब यहाँ पे ऊपर वाली चीजों को देखते हैं. लोअर बोरोइंग कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट विच वी हैव जस्ट सीन कि इट विल हेल्प इन लोअरिंग द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट. इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विच वी हैव जस्ट सीन कि जब यहाँ पे गवर्नमेंट कम बोरो कर रही होगी तो मनी विल बी अवेलेबल फॉर द प्राइवेट investors to borrow at a lower price and invest it, so that is also correct. Higher market interest rate, अब यहाँ पे मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, कम होते चले जाएंगे, so this is wrong. The other two are correct and the answer will be B. Moving to question number 85.
if an economy, the repo rate is increased by the central bank and the wholesale price index inflation is showing a declining trend, then which of the following is the most likely economic implication? Again यहाँ पे पूछा गया है most likely, exceptions will be there. So कभी भी पेपर में specifically जब आप इकोनॉमी अटेम्प्ट कर रहे हैं, always remember कि exceptions के पीछे नहीं भागना है, राइट? जहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म में पूछा गया है, आपको जनरलाइज्ड फॉर्म में उसे एनालाइज करना है. ओवर एनालिसिस जब हम पेपर में करते हैं तो बहुत बारी स्पेसिफिकली इकोनॉमी में वी हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक एंड मार्किंग द रॉन्ग आंसर. यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म की बात की जा रही है. सो अब किसी भी कंट्री के अंदर रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है, रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है मतलब बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज होगा लोगों का, एंड वो कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, राइट? इन्फ्लेशन डिक्लाइन हो रहा है, फिर भी रेपो रेट इंक्रीज किया जा रहा है. सो जनरली क्या होता है, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है, बट डिक्लाइनिंग है, हो सकता है कि वो आपका होल, यहाँ पे तो WPI की बात की गई है, आई एम टॉकिंग अबाउट CPI. CPI इज लिंक्ड विद द रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, इफ यू गाइस नो, राइट? यहाँ पे वो बात कर रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इज शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल इंक्रीज, पोटेंशियली स्लोइंग डाउन इन्वेस्टमेंट. सो रेपो रेट बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज होगी, इट कैन slow down the investment, that is a quite possibility. Consumer price index will also decrease in the near future. It is not necessarily, right? Consumer price index consists of both goods and services and the basket is not same as that of WPI. So not necessarily in all the cases WPI कम हो रहा है तो CPI भी कम होगा. Government's tax revenues will significantly increase due to higher price. अब इन्फ्लेशन तो कम हो रहा है तो हायर प्राइस कैसे हो गए? सो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ जाएगा? इंडियाज एक्सपोर्ट विल बिकम मोर कम्पिटेटिव इन द ग्लोबल मार्केट. एक्सपोर्ट्स को कम्पिटेटिव कब बनते हैं? एक्सपोर्ट्स कम्पिटेटिव बनते हैं जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो या फिर करेंसी डेप्रिशिएट करे. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपके रेपो रेट बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ रहा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा. रुपये की यहाँ पे बात हो नहीं रही है. सो द फर्स्ट वन सीम्स टू बी द मोर अप्रोप्रिएट और द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन रेपो रेट, पोटेंशियली स्लोइंग डाउन द इन्वेस्टमेंट, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑफ बजट बोरोइंग इन इंडिया. अब इसके लिए अगर आपको ऑफ बजट बोरोइंग का कंसेप्ट पता है तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू. रिसेंटली वी हैव सीन दैट off budget borrowing, many states were involved in doing this off budget borrowing, and then central government asked them to not do it and basically tightened them, and because of which we have seen that in many states off budget borrowing has decreased last year, right? So multiple articles have come which are talking about this. So off budget borrowing क्या होता है ये आप समझिए. off budget borrowing होता है कि गवर्नमेंट एक borrowing करती है by issuing government securities or directly taking loan from the banks, right? उसे this will reflect in the government's budget, right? It will reflect as a fiscal deficit, it will reflect as a debt on the government. So this is your normal borrowing that the government is doing, internal, external, it can be both. एक गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हैज से इन द बजट दे हैव एलोकेटेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू डिफरेंट सेक्टर्स, देयर दे आर रनिंग PSUs. So instead of borrowing directly to provide them that allocated budget money, when they see that they cannot, their fiscal deficit is increasing or their borrowings are increasing, what they will do, they will not borrow by themselves. They will ask PSUs, since they are a corporate, they are themselves acting as a separate entity, they will ask PSUs to borrow to meet the demand that has been basically told to be or that has been allocated to them in the budget. तो वो क्या करेंगे कि वो PSUs को या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को बोलेंगे टू गो एंड बोरो इट. सो इट विल रिफ्लेक्ट इन द बैलेंस शीट ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड नॉट द बैलेंस शीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली. So it will not be counted in the fiscal deficit or it will not be counted in the deficit, your budgetary deficit which will be shown in the budget, right? But ultimately it is increasing the debt burden on the country, right? So इसे बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग कि आपके बजट में नहीं दिख रहा है, बजट से ऑफ हो गया बट बोरोइंग कर रहे हैं क्योंकि ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है दे आर बोरोइंग इट बिकॉज गवर्नमेंट इज आस्किंग देम टू बोरो फ्रॉम दोज पीपल फ्रॉम बैंक्स डायरेक्टली एंड दे विल पे द इंटरेस्ट एंड ऑल. बट वो अपनी जो उन्हें एलोकेशंस की गई थी, जो प्रॉमिस किए गए थे, वो शायद उसे फुलफिल नहीं करना चाह रहे हैं. वो बोलेंगे कि हमने इस PSU को 50,000 करोड़ रुपीस देने थे, इस सेक्टर में 50,000 करोड़ रुपीस देने थे, बट वी हैव गिवन 25,000 करोड़ रुपीस एंड द रिमेनिंग 25,000 करोड़ रुपीस माइट हैव बीन यूज्ड समवेयर एल्स
अगर उसे पहले उतना का उतना ही देते तो क्या होता कि जहां पे अभी यूज किए हैं वो 25,000 करोड़ रुपीस, उसके लिए हमें बोरो करने पड़ते, तो अब बोरो नहीं करने पड़े गवर्नमेंट को। इसे बोलते हैं कि ये कंसेप्ट है ऑफ बजट बोरोइंग का, राइट। सो ऑफ बजट बोरोइंग आर द लोन्स दैट आर नॉट डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट्स बजट डॉक्यूमेंट, दैट इज करेक्ट। ये मैंने बताया पर्पज ही ये है इसका। दीज बोरोइंग्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर without affecting the fiscal deficit directly, that is also correct. Off budget borrowing do not have any impact on the country's debt levels, that is wrong. Ultimately तो ये country के debt level पे impact कर रहा है, वो increase हो ही रहा है, so that statement is wrong and these two are correct, 1 and 2. Moving ahead, India's current account deficit is frequently expressed as a percentage. This percentage is calculated in relation to, बहुत ही simple question है, but I am sure कि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी आई, राइट। मैनी पीपल हैव आस्क्ड मी कि सर इसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट। जब हम पढ़ते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट है आपकी जो भी ट्रेड्स एंड सर्विसेज में या ट्रांसफर्स में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंस है, इट इज बेसिकली डेफिसिट विल बी हैपनिंग व्हेन एक्सपोर्ट्स आर लेसर एंड इंपोर्ट्स आर हायर। बट ये किसके कंपैरेटिवली हम लेते हैं या किसके परसेंटेज में हम देते हैं? If you have seen the recent articles in the newspaper few months back, then they were talking about that in the second quarter, India's current account deficit has decreased to 1% of the GDP, right? इसे कंपैरिजन के लिए, बाकी कंट्रीज से कंपैरिजन के लिए कि आपकी कंट्री में आप अपनी जीडीपी का कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना करंट अकाउंट डेफिसिट है, वी टेक इट इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी. सो द आंसर विल बी द टोटल साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज जीडीपी विल बी द आंसर ओवर हियर. एंड इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट इफ यू आर नॉट careful, if you are not reading newspapers properly or if you have missed it in the class, it might become very difficult कि fiscal deficit का होता है क्या ये बेसिकली आपका गवर्नमेंट का आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल डेट का होता है, वैल्यू ऑफ इंडियाज टोटल इंपोर्ट्स का होता है. सो इट इज ऑफ द जीडीपी, राइट. मूविंग अहेड, अगेन अ वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन, हमेशा आपके पास न्यूज़ में रहता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या होती हैं. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बेसिकली इम्पोज्ड अ टैक्स ऑफ 30% on virtual digital assets, specifically the people who are trading in cryptocurrencies and all those things, right? So ये क्वेश्चन वहीं से आपका जनरेट होता है. So virtual digital assets क्या है, इसकी गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन दी है, that effective from 2002 onwards any income from transfer from VDA is taxable at a rate of 30% plus surcharge and cess. VDA has been defined in a wide manner to include any information, code, number or token not being Indian or foreign currency, not being Indian or foreign currency, which means cryptocurrencies, all the cryptocurrencies, and generated through cryptographic means or others, right? So ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर और टोकन जो कि कोई करेंसी नहीं है इंडिया या फॉरेन की और उसे जनरेट किया गया है क्रिप्टोग्राफिक मीन्स या और चीज़ों के थ्रू, उसे बोला जाएगा वर्चुअल डिजिटल एसेट. एंड कोई भी अगर उसमें ट्रेड कर रहा है या कोई भी उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, बेसिकली इफ़ यू आर कंसिडरिंग cryptos as an asset and if you are earning a profit on that asset, you will be charged 30% of that profit, right? So यहाँ पे VDA पूछा गया है कि basically which of the following is not likely not to be classified. पहला है नॉन फंजिबल टोकन्स रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप ऑफ डिजिटल आर्टवर्क. नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है कि आपने एक लाइक देयर हैज बीन एग्जांपल्स वेयर दे हैव टेकन अ पिक्चर. सो जो ओरिजिनल पिक्चर थी, क्योंकि अब आपने उसे कॉपी पेस्ट कर लिया, सब लोगों को आपने ट्रांसफर कर दिया, सो दे आर ऑल कॉपीज ऑफ दैट पिक्चर. उस ओरिजिनल पिक्चर का एक डिजिटल कोड जनरेट किया जाएगा विच विल वेरीफाई कि ये ओरिजिनल पिक्चर थी. एंड नाउ पीपल हैव असाइन्ड वैल्यू टू इट, पीपल आर परचेजिंग इट इन द थिंकिंग जस्ट लाइक कि जैसे आपकी पेंटिंग्स होती हैं कि आज अगर मैं इसे 1 करोड़ की खरीद रहा हूँ तो कल ये 2 करोड़ की बिकेगी इफ इट हैज़ बीन टेकन बाय सम बिगर फोटोग्राफर और सम फेमस फोटोग्राफर एंड ऑल, राइट. सो इस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं NFTs, राइट. दे रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप ऑफ डिजिटल आर्ट वर्क, सो इट इज बेसिकली बीइंग ट्रीटेड एज एन एसेट एंड इट विल कम अंडर VDA. A utility token offering membership privilege within a decentralized gaming platform. अगेन डिसेंट्रलाइज्ड है, क्रिप्टोग्राफिक है, या फिर आपका बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है गेमिंग से रिलेटेड जहां पे आप कुछ पैसे देके वो टोकन्स परचेज कर रहे हैं, राइट. अगर आपसे वो टोकन्स कोई और परचेज करता है उसी गेम के अंदर एंड दे आर रेडी टू पे यू एक्स्ट्रा, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज VDA ओनली. अ स्टेबल कॉइन पेग्ड टू द वैल्यू ऑफ US डॉलर, बट वो खुद में US डॉलर नहीं है, इट इज जस्ट पेग्ड टू द वैल्यू ऑफ US डॉलर, कि US डॉलर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी उस कॉइन की डिजिटल, अगेन इट्स अ क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन, उसकी वैल्यू भी वैसे वैसे चेंज होगी. सो अगेन इट इज ऑल्सो अ
VDA. सो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा D, विच इज अ डिजिटल कूपन इशूड बाय रिटेलर रिडीमेबल फॉर ऑनलाइन परचेजेस. सो ये एक डिजिटल कूपन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, आप बेसिकली ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, उसमें आप इस कूपन कोड को डाल रहे हैं जो आप जनरली करते हैं. आप यू मस्ट हैव यूज्ड कूपन सो मेनी टाइम्स व्हेन यू आर परचेजिंग ऑनलाइन थिंग्स, राइट. सो इट इज नॉट अ VDA, right. So the answer will be D over here and not the first three. Now moving ahead and coming to the, either you can say that these are the questions from current affairs or it is still aligning with the same thing of UPI, right. So an Indian citizen wants to travel to a non-Asian country where he can use the unified payment interface UPI based apps to make payment. Which of the following countries would you suggest? So अभी आपने देखा होगा on 26th of January we had the France president coming to India as a guest of honor, and after that we saw the news that now you can buy Eiffel Tower tickets with the help of UPI, right. So the answer is France over here. इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे आप UPI यूज कर सकते हैं, दिस यू शुड ऑल्सो नो, राइट. सो मैंने आपको बताया था कि रुपे कैन बी यूज्ड इन 5 कंट्रीज एंड अपार्ट फ्रॉम दोज 5 कंट्रीज यू कैन यूज UPI इन 2 अदर कंट्रीज, राइट. सो UPI कैन बी यूज्ड इन 7 कंट्रीज. अगर मैं UPI की बात करूं तो इट कैन बी यूज्ड इन 7 कंट्रीज. सो रिसेंट वन दैट हैज बीन एडेड इज श्रीलंका, राइट. उसके अलावा हमने देखा कि फ्रांस ऐड किया गया है. अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज इन UAE एंड UAE में भी इंटरलिंकेज किया गया, जो 8 पैक्ट साइन किए गए हैं उनमें से 2 पैक्ट हैं आपका जो UPI और रुपे को इंटरलिंक किया गया है विद आनी. उनका जो UPI है उसे आनी बोला जाता है. दीज आर ऑल हैव बीन प्रोवाइडेड, द स्टैक्स हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इंडिया ओनली and their रुपे has also been interlinked, right. So यहाँ पे आपका UAE एक आपको कंट्री ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे आप UPI यूज कर सकते हैं. उसके अलावा जहाँ पे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था that was नेपाल एंड भूटान, राइट. उसके अलावा हमारे पास एक और एशियन कंट्री आती है सिंगापुर, राइट. यहाँ पे जो आप इनका पे नाउ है उसके साथ हमने UPI को इंटरलिंक किया था. एंड इसके बाद ये सारी कंट्रीज आप देखेंगे तो फ्रांस को छोड़ दीजिए, दे आर ऑल एशियन नेशन. सो फ्रांस आपकी एक फर्स्ट यूरोपियन नेशन हो गई एंड उसके बाद फर्स्ट अफ्रीकन नेशन है हमारे पास मॉरिशस. इन 7 जगह पे आप आज की डेट में UPI यूज कर सकते हैं. यू कैन मेक ट्रांजेक्शंस वाया UPI बिकॉज द सिमिलर स्ट्रक्चर दैट दे हैव इन देयर कंट्री, इट हैज बीन लिंक्ड और इंटरलिंक्ड विद द UPI ऑफ आवर कंट्री. अगर आपसे बोले कोई रुपए आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट. रुपे इज बेसिकली इफ़ यू नो कि एक जो आपके जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स पे वीज़ा मास्टर यूज़ करते हैं आप, उनकी जगह पे इंडिया ने एक अपना सिस्टम डेवलप किया है दैट इज़ रुपे एंड दे आर बोथ डेवलप्ड. UPI एंड रुपे आर बोथ डेवलप्ड बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अब ये जो डेवलप किया गया है सिस्टम, इसको भी बहुत जगह पे लिंक हो गया है कार्ड वाला सिस्टम. रिसेंट वन दैट वी हैव सीन इज UAE. सो UAE में एक साथ हमारे दोनों लिंक हुए हैं. उसके अलावा बेसिकली अगर आप फ्रांस और श्रीलंका को हटा दें तो ये 5 कंट्रीज हैं जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो सबसे पहले हमारे पास नेपाल एंड भूटान आ जाते हैं, राइट. उसके अलावा सिंगापुर एंड द ओनली नॉन एशियन कंट्री with respect to where रुपे can be used or रुपे cards can be used is Mauritius. It is the first non-Asian country where रुपे cards can be used, right. अब सर इंडिया में तो हमने बात की कि रुपे और UPI जो है वो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दिया है, राइट. एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली वर्किंग अंडर, और इट वाज एन आइडिया विच केम फ्रॉम RBI प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियाज बैंक एसोसिएशन. इन दोनों ने इसे स्टार्ट कराया था. इन दोनों के अंदर ये बेसिकली काम करती है. इट वाज देयर आइडिया टू स्टार्ट दिस, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड RBI. अब सर फॉरेन में इन्हें कौन कर रहा है? सो वी हैव सेट अप अ डिफरेंट एंटिटी विच इज NPCI, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NIPL. ये फॉरेन कंट्रीज के साथ जब हम बात कर रहे हैं इंटरकनेक्टिविटी की, सो दिस इज वर्किंग ओवर देयर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स. सो आप सभी को पता है कि रिसेंटली वी हैव सीन, जो आपकी लास्ट ब्रिक्स समिट हुई थी साउथ अफ्रीका में, वहां पे हमने एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स होते हुए देखा. इनिशियली 6 कंट्रीज कमिटेड टू इट एंड द नंबर्स रीच टू 11,
but in the last moment Argentina backed out, right? So Argentina didn't join the BRICS officially, and now the 5 countries have been added in the month of January. So now BRICS is basically having not 5 members but 10 members. So पहले 5 मेंबर कौन से थे? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. अब जो नए 5 मेंबर ऐड किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? वी हैव यूएई, वी हैव इजिप्ट एंड वी हैव इथोपिया. अर्जेंटीना वॉज द वन बट इन्होंने बैकआउट कर दिया. कैमरून इज नॉट देयर. सो द अदर 2 कंट्रीज आर सऊदी अरेबिया एंड ईरान. सो ये जो 5 कंट्रीज हैं, 3 आपको यहाँ पे दिख रही हैं, 2 मैंने यहाँ पे लिखी है. नाउ दे हैव जॉइंड ब्रिक्स, राइट? सो ये 5 कंट्रीज हैं और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली 3. सो 2 वर गिवन रॉन्ग. अर्जेंटीना ने अगर ज्वाइन कर लिया होता तो 4 हो जाता, बट अर्जेंटीना हैज नॉट ज्वाइंड इट, राइट? सो यू नीड टू बेसिकली अपडेट योर करंट अफेयर्स. जिन्होंने जब समिट हुई थी तब पढ़ा होगा तो सब न्यूज़पेपर्स में लिखा था 6 कंट्रीज ऐड हो रही हैं, बट जनवरी में जो एक्चुअल एडिशन हुआ वो 5 का हुआ है एंड अर्जेंटीना इज नॉट देयर, राइट? Moving ahead, consider the following statements regarding the stop clock rule in cricket. Now we are seeing that on such kind of things are being asked in UPSC from a sports section also, wherever we are seeing new rules, new changes or something related to India, then they are being asked. In the last 3 years we have seen 5 such questions. So this stop clock rule and timed out, there were 2 things which were in the news. Timed out you must have seen during the मेंस वर्ल्ड कप विच वॉज हैपनिंग, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, जहाँ पे एक श्रीलंकन प्लेयर को आउट दिया गया अंडर द रूल ऑफ टाइम्ड आउट. वो टाइम से बैटिंग स्टार्ट नहीं कर पाए थे एंड बिकॉज ऑफ विच ही वॉज गिवन टाइम्ड आउट. इन वर्ल्ड कप इट वॉज 3 minutes टाइम दैट वॉज अवॉर्डेड. इन जनरल द टाइम अवॉर्डेड इज 2 minutes. अब आ जाते हैं स्टॉप क्लॉक सिस्टम पे. ये एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है, अभी ट्रायल सिस्टम है बेसिकली. नाउ द आईसीसी इज टेस्टिंग इट इन अ विमेंस टूर्नामेंट राइट नाउ, एंड फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल उन्होंने बोला कि विल टेस्ट इट फॉर एज अ पायलट प्रोजेक्ट बेसिस. एंड इसके अंदर क्या है दैट इफ 1 over is complete then the next over should start within 60 seconds. Next over should start within 60 seconds. If a fielding team is not able to do so, they will be given a warning, and if they are after 3 warnings, they will be charged with a penalty of 5 runs. After 3rd warning, they will be charged with a penalty of 5 runs if you are not able to start your next over within 60 seconds of the previous over. So generally what happens when the over is over, you have to set up the field, you have to again see which bowler is going to ball, and all those discussions take place. So sometimes due to this the games get delayed, right? So to maintain the momentum of the game, they want कि 60 seconds में आपको अगला over ball डालने के लिए आपको ready रहना होगा, and if you don't do it then you will be given a warning, and after 3 warnings there will be a penalty of 5 runs, right? So अभी pilot project basis पे test किया जा रहा है. So once an over is finished, the fielding team will have to be ready within 60 seconds to ball the next over. That is correct. अभी तक पर ओवर का सिस्टम नहीं था, टोटल सिस्टम था कि आपको अपने 50 ओवर 20 ओवर्स किस टाइम में खत्म करने हैं, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, सो पेनल्टी की फॉर्म में क्या होता था, यू हैव टू कीप 1 एक्स्ट्रा प्लेयर इनसाइड द 30 यार्ड सर्कल. अब ये नया रूल आया है. इट वॉज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप. सो मैंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये उसके बाद आया है. From December to April onwards it is being tested. So only one is correct. So the answer will be A over here. Moving to the next question, a map based question, very general question. These kind of questions you are seeing every year in UPSC prelims. यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये जो आपकी एसिक्यूबो रिवर है which is disputed between Venezuela and Guyana, ये किस ओशन के अंदर फ्लो करती है. So obviously you can see over here, this is basically the river that we are talking about, and this is Essequibo river, and यहाँ पे ये disputed region है between Venezuela and Guyana. So initially ये जो region है it belonged to Venezuela, then Guyana said that it's a disputed region. They basically reached out to the international courts and it was awarded to be a part of Guyana. And since then Venezuela has not accepted it, right? So it's a disputed region and that is why it is in the news. And the river that you can see over here, it flows into Atlantic. अब अगर आप सोचें कि वेनेजुएला और गुयाना आपको वैसे भी पता है मैप में कहाँ है, तो भी आपको कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए कि ये रिवर यहाँ से कोई फ्लो करेगी तो कहाँ जाएगी, राइट? ऑब्वियसली इट कैन नॉट गो टू अटलांटिक, इट कैन नॉट गो टू मेडिटेरियन, राइट? मेडिटेरियन कहाँ पे है आपको पता है, अटलांटिक कहाँ पे है आपको पता है, सॉरी अटलांटिक जाएगी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन ओशन, इट कैन नॉट गो टू इंडियन ओशन. आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं कि अगर कहीं से घूम फिर के जा भी सकती है तो आइदर इट कैन गो टू पैसिफिक और इट कैन गो टू अटलांटिक. बट अगर आप इनकी एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे देखें वेनेजुएला और गुयाना की, सो ऑब्वियसली इट विल बी गोइंग इनटू
अटलांटिक ओनली, नॉट पैसिफिक, राइट. सो ये आपका इंडियन ओशन में नहीं जा सकती, पैसिफिक में नहीं और मेडिटेरेनियन में नहीं. वेरी सिंपल क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Digital public infrastructure, we have talked about digital public infrastructure in this year's budget also. ये क्या है basically? It is any digital infrastructure which is being developed by the government which talks about providing services to the individuals or to provide them certain ease of doing things, right. इसे बोला जा रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे कि आपका कोविन ऐप पोर्टल हमने देखा था, राइट. अभी हमने यूविन पोर्टल की बात की है अंडर इंद्रधनुष वैक्सीनेशन का ट्रैक रखने के लिए. कोविन पोर्टल बनाया था कोविड का वैक्सीनेशन का ट्रैक रखने के लिए. उसी तरीके से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो चल रहा है उसकी बात कर सकते हैं. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो सकता है, ई नैम हो सकता है, यूपीआई हो सकता है, आधार हो सकता है. दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. सो गवर्नमेंट रिलेटेड जहां पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों की लाइफ को इजी कर रहे हैं. सो दीज थ्री आर पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड भारत पे इज नॉट, इट्स अ प्राइवेट एंटिटी, right. It's a UPI kind of app and some other features are there. So 3 will be the answer over here and the answer will be C. Consider the following statement with respect to India UAE relation. Again a very factual question. अभी मैंने बताया कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो UAE विजिट करने गए थे जहाँ पे हमने ये UPI और रुपए का इंटीग्रेशन देखा. उसके अलावा हमने देखा कि वी हैव साइंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद UAE. उसके अलावा हमने देखा कि और हमने वहाँ पे क्या किया है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ऑन IMEC, राइट. IMEC अभी हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया था. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हम वी हैव साइंड सर्टेन पैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी सेक्टर, वी हैव साइंड सर्टेन पैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू आपका कल्चर. इफ आई टॉक अबाउट द मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम जो हम लोथल गुजरात में बना रहे हैं उसमें सपोर्ट करेगा UAE हमें, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स अगेन. मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो हम बना रहे हैं, मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए, लोथल इन गुजरात, राइट. सो उसमें ये मदद करेगा. उसके अलावा यहाँ पे हमने देखा कि वी हैव टॉक्ड अबाउट योर भारत मार्ट. हमने भारत मार्ट की बात की है जहाँ पे SEZ के अंदर रिटेल, होलसेल और MSME सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इस पे काम किया जाएगा. उसके अलावा हमने देखा कि एक मंदिर को वहाँ पे उद्घाटन किया गया बैप्स टेम्पल का, बैप्स हिंदू टेम्पल का, विच इज़ बेसिकली बिल्ट ऑन अ गिफ्टेड लैंड, राइट, विच वॉज गिवन बाय UAE टू अस, राइट. एंड अबू मुरैखा के इज़ अ प्लेस वेरी क्लोज टू UAE, वहाँ पे ये लोकेटेड है आपका बैप्स हिंदू टेम्पल, राइट. इसके अंदर 7 डिफरेंट एस्पायर्स हैं, 7 डिफरेंट श्राइन्स हैं उनके अंदर. एंड द गॉड्स दैट आर केप्ट ओवर देयर इज लॉर्ड राम, लॉर्ड शिव, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड कृष्णा एंड द लॉर्ड स्वामी नारायण. जो आपकी बैप्स ऑर्गेनाइजेशन है, दे बेसिकली लॉर्ड स्वामी नारायण की पूजा करते हैं, विच इज़ अ वैष्णवाइट सेक्ट. एंड इट इज़ सेड टू बी, जो आपके लॉर्ड स्वामी नारायण है, इट्स अ री इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा ओनली. एंड इसके अलावा टू बेसिकली इफ यू सी gods from all parts of the country has been taken. We have Lord Ayappa in it and we have Tirupati Balaji in it. तो ये 7 different gods हैं यहाँ पे, right. अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडिया ने, अगर हम लाइक इफ यू सी द सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स, सो इंडियाज ट्रेड हैज़ इंक्रीज्ड विद इट एक्सपेंशन ऑफ, हमने ब्रिक्स किया तो वहाँ पे UAE को ऐड किया गया है. इंडिया एंड UAE आर पार्ट ऑफ I2U2, इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA, जिसे हम कई बार एशियाटिक क्वाड भी बोल देते हैं, राइट. सो इस ग्रुपिंग का भी UAE पार्ट है ऑब्वियसली. अगर इंडिया के डायस्पोरा की बात करें तो 3.5 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा आर लिविंग इन UAE. दे बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द startup system of Dubai, startup ecosystem of Dubai, 30% of the startups are owned by Indian origin people because of the better tax policy or lesser tax over there and ease of doing business. Many startups have their headquarters or offices in Dubai now, right. Apart from this, you have seen that we have integration of education also, where we have opened the IIT Delhi center in Abu Dhabi, right. IIT Delhi हमने अबू धाबी कैंपस स्टार्ट किया है जो February 2022 में रिवीजन किया गया था. एंड नाउ द फर्स्ट बैच हैज स्टार्टेड, राइट. सो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपने अभी न्यूज़पेपर में देखे होंगे. आई हैव जस्ट गिवन यू फॉर क्विक रिवीजन. UAE was India's second largest FDI contributor for the year 2023. This is wrong. UAE was the fourth largest FDI contributor. The I2U2 grouping includes both India and UAE. ये मैंने अभी बताया. India, Israel, UAE and USA. India has signed comprehensive economic partnership agreement as well as bilateral investment treaty. So bilateral investment treaty अभी हमने साइन की है 2024 में. And जो आपका CEPA है, CEPA is something that we have signed in 2022 with UAE. So हमने दोनों साइन किए हुए हैं. This statement is
करेक्ट और हमारा एम है इनके साथ, वी हैव अ एम ऑफ इंक्रीजिंग अवर नॉन फ्यूल बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाय 2030। जब हमने ये CEPA साइन किया था तो ये हमने टारगेट रखा था, सो 2 आर करेक्ट, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, with respect to Bharat Ratna award, consider the following statement. Again, something we have seen multiple times, we have talked about it multiple times, we have seen a question in UPSC in 2021, and if you have again missed it, then this discussion on Bharat Ratna has already taken in beyond classroom session that we have recently seen. So यहाँ पे आप statements को समझिए and I'll just help you in answering out. So it is awarded in recognition to exceptional service performance to the highest order in any field of human endeavor. Initially ये कुछ fixed थे, categories were fixed, but now they have expanded it in 2011 and this statement is correct. Bharat Ratna awardees have the same rank as the Union Cabinet Minister in table of President. That is also correct. They are ranked at 7th number, right? 7A actually अगर आप बात करें तो which is equivalent to 7 only and which is equivalent to the cabinet ministers. The convention of giving maximum 3 award a year was broken for the second time in 2024. This is also correct, right? ये conventional है कि 3 award से ज़्यादा नहीं दिए जाने चाहिए, but हमने देखा 1994 4 awards were given and in 2024 many people claim that it is due to political reasons, but 5 people have been awarded Bharat Ratna after a gap of 5 years. Last Bharat Ratnas were given in 2019 and after a gap of 5 years 5 Bharat Ratnas has been given and this is also correct. So किस किस को दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है. He was the CM of Bihar. He has worked with respect to reservation and social reforms, right? He was the one who has given reservation to OBCs and EWS and women in as early as 1970s, right? आपके मंडल कमीशन से भी पहले. So उन्हें दिया गया है posthumously. लाल कृष्ण अडवाणी is the only person who is alive and has been given Bharat Ratna this year, right? Rest all have been awarded posthumously. So ये award posthumously दिया जा सकता है. Initially the provision of giving this award posthumously was not there when the award was introduced in 1954, but 1955 में एक notification के through इसे add किया गया and it was allowed. The third person who has been given this award is P.V. Narasimha Rao. P.V. Narasimha Rao is basically, if you guys know, is the ex-prime minister of our country during 1991 to 1996 and he has done some phenomenal work with respect to your LPG reforms, with respect to your foreign policy of India, right? And then this has been awarded to Chaudhry Charan Singh, who was again ex-PM and a leader, farmers leader from UP. So he has been awarded for his work with respect to farmers. Chaudhry Charan Singh has been awarded, right? And MS Swaminathan, again he has died in this year, right? MS Swaminathan is said to be the father of Green Revolution in India and he has been awarded the Bharat Ratna this year, right? Abdul Ghaffar Khan was the first non-Indian to be awarded Bharat Ratna. That is also correct. So यहाँ से आपको एक और point मिलता है कि ये जो Bharat Ratna, it can be awarded to non-Indian also. Second non-Indian to be awarded Bharat Ratna was Nelson Mandela ji. Right? So it has been awarded to non-Indians also. Apart from this, there is twice that these awards have been stopped for a time being. एक बार था आपका 1977 और 1980 के बीच में अवार्ड्स को रोका गया था just after emergency, new government comes in, they stopped giving these awards. उन्होंने बोला कि these awards are basically politicized and they should be stopped. So एक बार इन्हें वहाँ पे रोका गया और एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिकली नेशनल अवार्ड्स को कैंसिल किया था या स्टे लगाया था when there was a lot of PIL that came to Supreme Court of India with respect to its contradiction with Article 18 with respect to being given to Subhash Chandra Bose posthumously and government not accepting that Subhash Chandra Bose has died in the plane crash that has happened before. So वहाँ पे बहुत सारी PIL थी तो गवर्नमेंट ने इसे स्टॉप लगाया. बाद में उन्होंने बोला it is not against Article 18 clause 1 which is basically abolition of title, since it is not a title so it can be given and it cannot be used as a prefix or suffix to your name, right? So it can be given. वो सब कोर्ट की जजमेंट आई. So these are certain pointers which you should be aware about Bharat Ratna. इसके अंदर क्या दिया जाता है? There is no monetary benefits, right? You will be given a certificate, एक सनद दिया जाएगा और एक मेंडेलियन दिया जाता है which is in the shape of people which has a sun symbol in the front and उसके नीचे लिखा होता है भारत रत्न हिंदी देवनागरी
उसके पीछे आपका नेशनल एम्बलम होता है और उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, अगेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, राइट। और ये आपको दो चीज़ें दी जाती हैं इसके अंदर। Moving ahead, with reference to recently launched APAR Automated Permanent Academic Account Registry. So यहाँ पे इन्होंने खुद ही बता दिया क्या है, ID consider the following statement. It is basically under, अगर आप देखें तो APAR is under one nation one student ID, right? The plan is basically to have APAR for one nation one student ID के अंदर ये APAR वाला concept introduce किया गया है। यहाँ पे क्या है कि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करके उसके अंदर रखा जाएगा, सो दैट दीज स्टूडेंट्स कैन मूव फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर स्कूल एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इट्स अ यूनिक 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डिजाइन फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन इंडिया। दैट इज करेक्ट, ऑल स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, मतलब स्कूल से लेके कॉलेज तक, क्योंकि जब आप ABC सिस्टम देखेंगे अपना, जिसे हम बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, that is only for university and college going students, but this APAR system is for all the people. It is voluntary right now, but if you are registered on APAR, then you have to, it is mandatory for you to register on ABC, that is your credit bank system और academic bank of credits का जो system है वो mandatorily आपको उस पर करना पड़ेगा, and all the information will be linked to DigiLocker where students can store all the academic degrees and certificate. Registration for creating APAR ID is voluntary, मैंने अभी आपको बताया, so all the three statements given over here are correct. Moving to the next question, very simple, very basic question about the Maldives and Lakshadweep issue that has recently taken place. Maldives rests on submerged volcanic plateau while Lakshadweep has a continental origin. Both are wrong. If you see, they are the atolls, or they are basically related to your corals, and they have been formed because of the Deccan trap and the hot spots that has been created. These islands have been formed, so they are not submerged volcanic plateau, right? So Maldives experience frequent earthquake while Lakshadweep lies in a seismically stable zone. Both lies in a seismically stable zone, right? कहीं पे भी आपकी दो प्लेट्स जो हैं वो मर्ज नहीं हो रही हैं, तो it is not the case. So second is also wrong. Maldives has a tropical climate while Lakshadweep experiences a more arid climate. They both are very close to the latitudes if you see, and longitudes also. So they both have the same tropical climate, and the answer will be D over here, right? Then the second last question over here is NIA, National Investigation Agency, which was created as the primary intention. अब ये बहुत सिंपल है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम क्या है। इसकी अगर आप फॉर्मेशन जानते हैं तो आपको ये आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वी हैव सीन मल्टीपल केसेस ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हैपनिंग, वी हैव सीन मल्टीपल केसेस ऑफ स्मगलिंग इन बिटवीन द स्टेट्स एंड आइटम्स कमिंग फ्रॉम वन बॉर्डर टू अ वन स्टेट एंड देन गेटिंग स्मगल्ड टू अदर स्टेट्स। सो ये सारी चीज़ों को प्रॉब्लम, या हमने देखा कि जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं वो कंट्री के अंदर बढ़ रहे थे, स्मगलर्स, टेरर, गन, फेक करेंसीज, और हमने देखा बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सो वी वांटेड टू हैव अ सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, क्योंकि क्या होता था कि एक स्टेट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है इन्वेस्टिगेट, ये पुलिस कर रही है, दूसरे वाले पे ब्लेम कर रही है, दूसरी उस पर ब्लेम कर रही है, वो तीसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। सो द इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली। सो इसका पर्पज़ ही ये था, इसे बनाया ही इसलिए गया था, राइट। सो इट इज़ बेसिकली conducting investigation of offences under the UAPA Act and the other terrorism related laws, and that is the reason why this has been formed, right? It was formed by an act in the 2008. National Investigation Agency was born, right? And at present NIA is functioning as the Central Counter Terrorism Law Enforcement Agency in India. It is registered, and यहाँ पे ये डिस्कशन कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि NIA ने केसेस बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड किए हैं, बट फाइनली कन्विक्शन रेट ये बोलते हैं कि जहाँ पर चार्जशीट फाइल हो गई है वहाँ पे 90% है, बट बाकी केसेस में आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, दिस सबमिशन ऑफ चार्जशीट ही नहीं हुई है। हैव रजिस्टर्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड 315 केसेस, right? After submission of charge sheet, 60 cases have been finally or partially decided in trial, right? On these 50 cases have been ended in conviction, giving NIA an enviable conviction rate of 90%. But what about the other 315 cases में से जो आपके 60 के अलावा बाकी केसेस हैं, वहाँ पे चार्ज शीट फाइल नहीं हुई है, फाइनल डिसीजन नहीं आया, so it's very slow. So इनके कोर्ट्स बढ़ाने की बात की जा रही है, and all such discussions happen, right? Next question, United Nations Agency is the which United National Agency
is the UN AIDS program coordinating board associated with. अब यहाँ पे आपको एड्स दिख रहा है, इट इज रिलेटेड टू HIV एंड एड्स ओनली, यूनाइटेड नेशन का है, राइट. सो ये आपकी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर आती है, राइट. एंड इट इज अ जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स. सो बोथ of these statements are correct. Very factual question, right, but it was in the news recently because of the meeting. So established in 1994 by a resolution of UN Economic and Social Council, right, launched in January 1996. UN AIDS is guided by program coordinating board with representatives of 22 government from all the geographic regions in India. UN AIDS is leading the global effort to end AIDS as a public health threat by 2030 as a part of sustainable development goal, राइट. सो ये इनका एम है. सो ये एम आप एक बार ही देख सकते हैं और ये हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंगनूर काउज, एन इंडिजीनियस कैटल ब्रीड फ्रॉम इंडिया. सो व्हाई दे वर इन द न्यूज रिसेंटली ऑन द 14th of January, Makar Sankranti, our Prime Minister has posted certain photos with this Pangnur cow and people got excited to know about it, but this has been in the news before also. So Pangnur cow क्या है, ये वर्ल्ड की शॉर्टेस्ट हम कैटल ब्रीड है. ये बहुत ही छोटे साइज में होती है. जनरली इट इज़ डोमेस्टिकेटेड और इट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड पंगनूर. इफ़ यू सी, इट इज़ डोमेस्टिकेटेड इन आंध्र प्रदेश. इट इज़ फाउंड इन द चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इन अ विलेज नेम्ड पंगनूर. वहाँ से इस काव का नाम आता है. इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड. दैट इज़ करेक्ट, right, and the breed originates from the Pangnur region in Andhra Pradesh, India, and is known for its adaptability to arid conditions. That is also correct. They have the highest milk yield among the indigenous cow breeds of India. This is wrong. इनकी yield कम ज़्यादा नहीं होती है सबसे ज़्यादा. They generally give like 3 to 5 liters of milk, but the milk is very creamier. It has high fat content and it is very good for consumption. It has high vitamin B, it has high calcium, potassium, and it is said that if you consume it on a daily basis, the possibility of breaking your bone is very less, right. So इसके benefits बहुत ज़्यादा हैं. Generally जो आपका cow milk होता है, it has a fat percentage of 3 to 5%, but in case of Pangnur cow, the fat percentage is 8% and generally above that also, right. So this is the basic difference between this. It's a very small cow. It is just like a pet dog, you can say, or a little bit bigger than that if you talk about the size of this cow, right. So first and two are correct, third is wrong. So the answer will be B, right. So this sums up this Anubhav 3's discussion with respect to your economy and current affairs. I hope this session is useful to you all, and I hope to see you guys in the next Anubhav 4, and then again back in the discussion so that we can discuss more such topics, and hopefully these discussions are benefiting you. And all the best for your prelims. Keep preparing, keep testing yourself, keep attempting more and more questions, right. All the best. Thank you.